Yogesh volume? No, there is no volume. He will There is give no volume? no, he will give the commentary. ये औरत का चेन स्नैचिंग हुआ है। अभी वो पुलिस स्टेशन में गई है एफआईआर देने को। ड्यूटी ऑफिसर इज आस्किंग हर क्वेश्चंस, वेयर शी वाज गोइंग, हाउ हर चेन वाज स्नैच्ड। This is a control room. The control room is giving message to all police station कि such a incident has happened and all should do nakabandi and trace that motorcyclist. This message is being received on vehicle, so they are passing to the wireless and beat marshals and nakabandi is seen arranged. All motorcycles they have been stopped by the police officers and they are checking and they are comparing the description of the thief with the said person. Now this officer, investigation officer, has registered FIR and he is showing the photographs of the wanted accused and arrested accused in chain snatching cases, in order to trace that person. If he is on record, she will identify, then accordingly efforts will be made to arrest him. So she is now watching the photographs. In Mumbai, whenever any accused is arrested, his photograph is taken and is kept on MOB record and that is circulated to all police stations. He's a policeman. He has contacted the informant and he is trying to get the information. Who was he? Accordingly, he is promising that he will give the information of the chain snatcher. In this film, this is made by police only, and our actors are policemen of Malwani police station. It's extorting money. No, he is giving money for giving information. Now the accused is here in the bar. Whatever money he has earned by selling the chain, he is throwing on the bar girl in orchestra. The informant has given information about the accused. The policemen have come there to nab him. They are watching. This is always happening in Mumbai during night time. You people are sleeping, but night में क्या होता है? It's very interesting to see. This person has been arrested. Chain snatcher has been arrested by the police on information. And his personal search, they are taking whether he is carrying weapon or not. What is the definition of theft? Theft की definition क्या है? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession. Section definition 378. That is, he 381 कर दे. We are starting from theft. This is 380. Starting the theft. 370. 370 is the definition. It is not a punishment section. What is the definition? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to thus taking is said to be commit theft. Movable property म्हणजे काय? Movable property यानी which can be moved. House cannot be stolen. It is immovable property. Tree cannot be, but after cutting the tree, it can be stolen. That is movable property. Movable and immovable, there are two types of property.
Dishonestly means intention is not good at all. Very dishonest intention. Out of possession. That means मेरे पास जो है वो मेरे possession के लेके जाती है, वो उसको विदाउट द कंसेंट. आदमी परमिशन लेके चोरी करता है या विदाउट परमिशन, इसलिए विदाउट कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर सच टेकिंग, त्याला थेफ्ट म्हणतात. अभी ये जो थेफ्ट है उसमें मिनिमम पनिशमेंट रहता है 3 months, 6 months, it depend upon the judge at the time trial, but maximum is 3 years. And fine it depend upon agar magistrate, 1,000 fine, 2,000 fine, and in default they also give more imprisonment. This is the definition of theft, punishment for theft. Next, 380 IPC means theft from dwelling house. 379 means theft from open place. 380 means dwelling house. Dwelling house means घर, अपना घर. घर में से चोरी हुआ तो उसको 380 IPC सेक्शन लगाते. Whoever commits theft in any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of the property shall be punished with imprisonment for either, which may be extended to 7 years and liability fine. अभी ये जो पनिशमेंट है 7 year एक्चुअली मेंशन किया है लॉ में, लेकिन मैजिस्ट्रेट हैज़ गॉट डिस्क्रिशनरी पावर एंड बाय सीइंग द सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा ही गिव्स पनिशमेंट 1 year, 2 year, 3 year. Everything depend upon the magistrate and circumstances of the case. So this is a 380 IPC theft from dwelling house. I will tell one incident of this 380. मैं जब घाटकोर पुलिस में था, मैं पेट्रोलिंग करने को निकला था. जब आगरा रोड से मैं नित्यान नगर के पास गया था, एक आदमी सामने टीवी सर पे लेके जा रहा था. तो हमारा पुलिस का जीप देखे वो रुक गया, ऐसा सम सस्पिशियस एक्टिविटी हैज मेड, सो वी इमीडिएटली डिटेन. ये टीवी आप किधर से लाए? बोला मेरा टीवी रिपेयर को लेके जा रहा है, शेट का है. ही हैज गिवन सम इवेसिव रिप्लाई. फिर उसको बोला पुलिस स्टेशन में चलो, सच बोलेगा तो तुमको इधर छोड़ेगा. क्या करता है तुम? नहीं, बोला मैं चोरी किया है. बोले कहाँ चोरी किया है? नित्यानंद नगर में एक घर है, वहाँ दूसरे माले पे मैं जाके चोरी किया है. फिर हम घर में गए, घर का दरवाज़ा खुला था, बेल दबाया. 2 मिनट के बाद एक औरत आई. मैं औरत को बोला आपके घर में से कोई चोरी हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, मैं घर में हूँ. बोला आप ज़रा चेक करो. उसने सब घर चेक किया. बोले है सब. बोला आपका टीवी किधर है? बोले सर कोने में देखा. अरे टीवी किधर गया मेरा? तो उनको दिखाया वो चोर नीचे, हम लोगों ने पकड़ा था टीवी के साथ में. तो ये उसको चोरी हुआ, उसको मालूम भी नहीं था. इट इज थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस. देन वी विल गो टू 381 थेफ्ट बाय सर्वेंट. Whoever being clerk, servant or being employed at the capacity of clerk, servant commits theft in the respect of any property. Class servant, क्लार्क म्हणजे कंपनी रहेगा तो क्लार्क, घर रहेगा तो सर्वेंट. बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लार्क, सर्वेंट कमिट्स थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ हिज मास्टर. ये तो घराचा जो मालक आहे, जो घर का मालिक है या कंपनी का मालिक है, उसके पोजेशन में जो प्रॉपर्टी रहता है वो चोरी करता है, उसको बोलते हैं थेफ्ट बाय सर्वेंट. उसका पनिशमेंट भी 7 year है, लेकिन 6 महीना 1 साल के ऊपर कोई जज उसको पनिशमेंट नहीं देता. 381 का केस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इन 94 आई वॉज अटैच टू सांताक्रूज पुलिस स्टेशन. एक दिन सुबह अरुणा ईरानी आई मेरे पास. उन्होंने बोला मुझे कंप्लेंट देने का है. मतलब क्या हुआ आपके? बोले मेरा शी वॉज स्टेइंग विथ मिस्टर कोहली. बोली कोहली सर अभी देना बैंक में गए, 5 लाख रुपए निकाला और अभी हमको प्रोडक्शन मैनेजर को देने का था. तो पैसा उन्होंने निकाल के लाया और बैग में रखा. फिर अरुणा ईरानी, उसकी माँ और ये कोहली तीन कर रहे थे. एक नौकर था उनका. तो उन्होंने बैग में पैसा रखा, वो नहाने को चले गए. अरुणा ईरानी वेंट टू किचन रूम और पैसा बैग में पड़ा था. 1 घंटे के बाद वो प्रोडक्शन मैनेजर आया, तो जो शूटिंग में पैसा मांग रहा था वो 5 लाख बोला. तो उन्होंने कोहली साहब को बोला सर वो 5 लाख किधर है? उन्होंने बोला वो बैग है वो लेके जाओ.
तो वो बैग लेके जाने लगा, तो बोले काउंट करो उसमें कितना बराबर है कि नहीं अमाउंट, क्योंकि मैं अभी तक चेक नहीं किया, बैंक से पैसा लाया। तो उन्होंने काउंट किया तो उनको 50,000 शॉर्टेज मिला। तो उन्होंने बोला पुलिस आपको सर 50,000 इसमें दिखता नहीं है। पुलिस साहब बोला ऐसा कैसा, बैंक में से मैं लेके आया, बैंक में कम दिया होगा शायद, ऐसा लगता है मुझे। वो बैंक में गए और बैंक वाले को बोले कि तुमने पैसा शॉर्ट दिया है। बैंक बोले मैं 10 बार गिना, आपके सामने गड्डी देखी 50-50 की, हमने तो बराबर पैसा, देखो आपके इधर ही कुछ गड़बड़ है। फिर वो घर में वापस आए, तो उन्होंने चुपचाप, नौकर तो सामने था, उसका बैग बीग सब झड़ती किया उसका, घर में पैसा मिला ना। बाद में उसके 10 दिन के बाद घर में देयर वाज सम झगड़ा बिटवीन कोहली एंड अरुण ऐरण। फिर दोनों का झगड़ा होने के बाद ये बाय मिस्टेक मिस्टर कोहली अरुण ऐरण को बोले कि 50,000 घर से गए, एक तू चोर है ना तो तेरी माँ चोर है। तो शी गॉट एंग्री, तो बोली अभी मैं ये फैसला पुलिस के पास जाके करी कौन चोर है इधर। और ये दोनों झगड़ते पुलिस स्टेशन में आ गए। फिर उन्होंने मुझे पूरा स्टोरी बताया कि कैसा चोरी हो गया। फिर मैं उनको बोला था घर में तो चोरी नॉट पॉसिबल, कुछ देखते हैं अपन, वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सर्वेंट। तो उनको पूछा सर्वेंट की तरह, बोले वो चोरी होने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो राजस्थान गए शादी के लिए, और उसके बाद वो आया नहीं है। ही वॉज टू कम आफ्टर 10 days। मैं बोला अभी आई विल सेंड माई टीम। राजस्थान में मैं एक PSI मोरे और 2 सिपाही को भेजा, बट उसका नौकर उधर मिला नहीं। फिर उसके बॉम्बे में कोई दोस्त है ऐसा, 1 month हम लोग सब इन्वेस्टिगेशन करते रहे, वो मिला नहीं। 1 महीने के बाद वो नौकर ने अरुण ऐरण को फ़ोन किया, मैडम मैं बॉम्बे आया हूँ, मैं घर पे आऊँ क्या नौकरी को वापस? तो मैडम बोली मैं 5 मिनट के बाद बोलती हूँ आप। फिर अरुण ऐरण ने मुझे फ़ोन किया, साहब वो फ़ोन कर रहा है कि वो बॉम्बे में आया है, बोले ये कॉल मी एट हिज हाउस। फिर वो घर में आया, फिर मैं घर में गया, मैं उसको पूछा, ठीक ही सवाल पूछा, ठीक लगाया ऑफ द रिकॉर्ड, पैसा किधर है? तो ही इज़ नॉट अ हार्डन क्रिमिनल, उसने तुरंत एडमिट किया कि मैंने चोरी किया है। एंड ही हैज़ टोल्ड हाउ ही हैज़ स्टोलन। बोले ये लोग बिजी थे, मैं बैग में से, बैग भी लॉक नहीं था, मैं एक 50 का गड्ढे निकाला और मैगजीन फ्लोर पे डाल दिया, और गाँव जाते समय वो निकाल के मैं चला गया, और वो पैसा सब मैं उधर खर्चा किया। देन ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज इंटरोगेटेड। Aruna Irani was personally interested in this case. She came to the police in detection room और आके ऐसा कमर पे हाथ रखे, साहब इसको लड्डू खिलाओ, उसने क्या क्या चोरी किया है। एंड शी ब्रिंग लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स स्टोलन फ्रॉम हर हाउस। एंड देन द सर्वेंट एडमिटेड दैट फॉर द लास्ट 15 years ही वॉज कमिटिंग थेफ्ट। एंड उसने वो चोरी का पैसे से शिरडी में ज़मीन लिया था, 1 acre लैंड ही हैड परचेस्ड। फिर सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट भेजा। देन आई हैव आस्क्ड अरुण ऐरण कि आप कोर्ट में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन करो, आपको बॉन्ड के ऊपर प्रॉपर्टी मिलेगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन में अथॉरिटी लेटर दिया तो भी कोर्ट के पास, कोर्ट गिव ऑर्डर की ये आदमी को ये जो चोरी हुआ प्रॉपर्टी बॉन्ड के ऊपर दे दो, बिकॉज अरुण ऐरण वॉज अ वेरी बिजी लेडी, तो शी वॉज नॉट हैविंग टाइम टू अटेंड। लेकिन जज ने जैसे अरुण ऐरण का नाम देखा, बोला नो रिप्रेजेंटेटिव, शी मस्ट कम टू द कोर्ट। मैं मैडम को बोला, मैडम कोर्ट आपको देखना चाहता है। मैडम बोली ओके, मैं दिखा दी उसको। फिर दूसरे दिन कोर्ट में मैटर चला, अरुण ऐरण गई चुपचाप बुरखा डाल के, तो मैटर आ गया रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का। अरुण ऐरण का नाम लेते हुए उसने एक बुरखा 1 सेकंड के लिए ऊपर किया और वापस नीचे, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी भी रिटर्न टू अरुण ऐरण। 381 के ऐसे देर आर सेवरल केसेस, आई विल टेल वन बाय वन। वी विल गो टू नाउ हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग मीन्स घर फोड़ी। घर फोड़ी यानी हाथ से तोड़ना ऐसा नहीं, कि ताला तोड़ना ऐसा नहीं। देर आर 6 ways हाउ हाउस ब्रेकिंग इज कमिटेड। ए पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास, यानी वो घर ट्रेसपास करके अंदर जाता है। And it effects entry into the house and any part by 6 ways। कोई चोर खिड़की से जाता है, उसको लगता है कि अपन खिड़की में गया तो अपन सक्सेसफुल होता है, तो देयर इज 6 ways। ये हाउस ब्रेकिंग अलोन सेक्शन नहीं है। हाउस ब्रेकिंग होने के बाद वो घर में जाने के बाद क्या होता है, घर में से चोरी करता है। तो हमेशा केस रजिस्टर्ड होने के बाद 454, 457 रेड विथ 380 IPC सेक्शन लगते हैं।
अभी ये 445 जो है IPC का, ये उसका डेफिनेशन है हाउस ब्रेकिंग का. फर्स्टली इफ ही एंटर्स क्वाइट थ्रू पैसेज बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाऊस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाऊस. आणि पॅसेजमधनं आतमध्ये गेला आणि दरवाज्यातनं गेला, थोडा असा दरवाजा जरी लोटला असेल तर ढकलून जरी गेला तरी ती हाऊस ब्रेकिंग होती. नेक्स्ट. Secondly, if he enters quite through any passage not intended by any person other than himself or abetter म्हणजे मदत करणार of the offense, the human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling, climbing over any wall. जो हाउस ब्रेकर कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे तीसरे माले पे चोरी करने का, दे क्लाइंब फ्रॉम पाइप से क्लाइंब करते. तो घर तो इंटैक्ट रहता है, आदमी सोयल रहते हैं, लेकिन ही क्लाइंब्स थ्रू पाइप और फिर विंडो से अंदर जाके चोरी करो. तो दिस इज सेकेंडली थ्रू क्लाइंबिंग, स्केलिंग. Thirdly, if he enters quite through passage which is or any abetter of the house has opened in order to committing the house trespass by means of which the passage was entered by the ओपन म्हणजे त्यांनी दरवाजा तोडला वगैरे तर त्याला thirdly, घराला लॉक आहे तर ते तिने ब्रेक केलं. If he enters quite opening by any lock, हे fourthly, by opening any lock in order that, प्रत्येक हाऊस ब्रेकिंगमध्ये काही माणूस घर तोडतोच असं काही नाही. नुसतं घर लोटलेलं असं पुश केलं तरी ते हाऊस ब्रेकिंग, दुसऱ्या रस्त्याने गेला तरी ते हाऊस ब्रेकिंग. नेक्स्ट. While committing house breaking, if somebody is there and he is threatening of assault, कोई अभी समझो बिल्डिंग में गया और सामने से कोई आ रहा है और उसको धमकी दे रहा है कुछ बट बोलो मत कुछ, और वो बाद में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, तो उसको ये 50 बाय थ्रेटनिंग ए विटनेस. एंड लास्टली, if he enters or quiets any passage which he knows to be fastened against such an enter or departure to have been unfastened by himself or by any abetter of the house. म्हणजे कोणी कडी लावली बरं, फास्टन म्हणजे कडी बिडी लावलेली असेल तर तो धक्का मारून आतमध्ये गेला तर ती हाऊस ब्रेकिंग होते. असं बाय 6 ways हाऊस ब्रेकिंग इज कमिटेड. देर आर सम एक्सपर्ट हाउस ब्रेकर्स, दे डू हाउस ब्रेकिंग ओनली डे टाइम. देन औरत लोग जब स्कूल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वो 15-20 मिनट में ताला तोड़ के अंदर घुसते और चोरी करते. दिस इज अ मोर सीरियस ऑफेंस. हु कमिट्स लर्किंग और ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस पनिशेबल विच में भी त्याला शिक्षा मिनिमम 3 वर्ष है, मिनिमम 3 years उसको सजा है और मैक्सिमम 10 years है. डिपेंड अगेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. नेक्स्ट. नाइट हाउसिंग, कोई लोग नाइट को हाउस ब्रेकिंग करते. मोस्टली 454 बहुत कम हाउस ब्रेकिंग होती है, 457 बहुत ज़्यादा होती है. रात को जब लोग गांव जाते ये जाते दे कीप वॉच, और ये उनको लगता है कि 1 महीना 2 महीना सॉरी 1 दिन 2 दिन ये घर बंद है, फिर वो लोग रात को वो ताला तोड़ के ये इसका कुछ रीजन है क्या? Why is night breaking and day breaking separate? डे ब्रेकिंग म्हणजे दे गेट द चांस I know why does it have to be house breaking? Is house breaking? हाउस ब्रेकिंग. So ये But day house breaking is more serious and night house breaking is not less serious. Day house breaking is having more punishment, 10 years तक. day house breaking is more serious. All are there and in spite of वो डेयरिंग करके अंदर घुसता है और उसको मालूम है कि कोई तो भी आके पकड़िए होगा, फिर भी डे हाउस ब्रेकर इज अ वेरी डेंजरस पर्सन. मैक्सिमम 10 years है, वो मिनिमम 3 years है. इसको 5 to 14 नहीं, एवरीथिंग पनिशमेंट इज अ पार्ट, ये सब कोर्ट के ऊपर है. पनिशमेंट इज लॉ में कोई फांसी भी दिया तो कोर्ट उसको फांसी नहीं देती. इट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस. किसी का है ये 5 years to 14 है और वहाँ पे 3 to 10 है. म्हणजे नाईट जास्त सिरियस आहे ना. नाईट आता त्यांनी ते आता अमेंडमेंट केली आहे. आता अमेंड केली. सुरुवातीला डे हाऊस ब्रेकिंग वॉज अर्लियर, आता हे अमेंडमेंटमध्ये आलेले 14 वर्ष मॅक्झिमम. नाही, ज्यामध्ये शिक्षा 7 वर्षापेक्षा जास्त आहे ते म्हणजे रॉबरी, डेकॉटी, तो वेगळा चॅप्टर. हाऊस ब्रेकिंग असं मॅडमने जे क्युरी काढली ती बरोबर आहे, याच्यावर डे अँड नाईट काय शेवट इट इज हाऊस ब्रेकिंग.
तर ते कायद्यात वेगवेगळं केलेलं आहे जनरल म्हणजे भाग केले बट ॲक्च्युअली दे हाउस ब्रेकिंग इज मोर सीरियस बिकॉज ऑल आर देर आजू बाजू में लोग रहते फिर भी हाउस ब्रेकिंग होता है नाइट में तो ये 14 ईयर कब लगता है तो जब हाउस ब्रेकर आता है सोसाइटी में और बाहर के लोग को ताला ये कड़ी लगाता है फिर वो सबके सामने आवाज आता है फिर भी वो हाउस ब्रेकिंग करता है जब सर्कमस्टेंस ऐसा होता है कि लोग डर के घर में बैठते हैं देन दैट 40 ईयर्स इज अप्लाइड बाय द जज नेक्स्ट डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन द रिसेप्टिकल म्हणजे पानाचं दुकान जिसमें कोई रहता नहीं है उसको रस्त्यात असतात ना शेड्स पानाचं दुकान किंवा जे शेड्स छोटी छोटी दुकानं असतात हां रिसेप्टिकल तर त्याला ते 467 आहे whoever dishonestly with intent to commit mischief breaks open unfasten any closed receptacle which contains or which believes to contain property shall be punished with imprisonment either for a term of 2 years or with fine or both. This punishment is less because here the receptacle is a temporary structure. So there is not and these receptacles are generally broken during night time. डे टाइम में तो वो रिसेप्टिकल सारे रास्ते के ऊपर रहते हैं तो जनरली ये रिसेप्टिकल ब्रेकिंग जो है वो हमेशा रात को होता है मैं एक दिन MIDC पुलिस में था पेट्रोलिंग कर रहा था पेट्रोलिंग करते समय एक आदमी ऐसा एक बड़ा क्या म्हणतात त्याला ऐसा चादर में सब ऐसा बांध के जा रहा था तो उसने ऐसा पीछे देखा पुलिस जीप आ रहा है वो ऐसा छोड़ के भागने के बाद हम लोगों ने उसको पकड़ा तो त्याच्या वो सब चादर में सब सिगरेट बॉक्स ये वो सब लिपेटे तो उसको पूछा ये इतना सिगरेट किधर जा रहा है बोला मेरे को गाँव जाना है और मैं उधर दुकान लिया है और ये मैं सब खरीदा है मैं जा रहा हूँ उधर फिर उसको इंटरोगेट करने के बाद उसने बोला कि मैंने एक रिसेप्टिकल पान का गाड़ी तोड़ा है और उधर से वो चोरी किया देन वी वेंट टू द शॉप दैट शॉप वाज कम्प्लीटली पान शॉप वाज कम्प्लीटली ब्रोकन एंड देयर वाज नोबडी then I kept Pahara there and sent a message to that owner. He came at 12 o'clock, at 9 o'clock to open and then it was registered. These are the house breaking and theft sections. Now I will tell you the different stories about these sections. ATM तोड़ेगा हाँ ATM तोड़ेगा ATM तोड़ेगा तो रिसेप्टिकल करेक्ट रिसेप्टिकल इज अ क्लोज प्लेस उसमें कोई रहता नहीं नाही पण म्हणजे तुझे लेस पनिशमेंट है पनिशमेंट इज लेस ATM में सर फुल ऑफ कैश प्रॉपर्टी इज मटेरियल 2 रुपए का चोरी हुआ तो भी चोरी और 2 लाख का हुआ तो भी चोरी नेक्स्ट ये नॉर्थ रीजन जो है उधर यानी गोरेगांव से लेके दहीसर तक उसका ये क्राइम साइकिल है चेन स्नैचिंग का चेन स्नैचिंग में क्या होता है चेन स्नैचिंग पहले ऐसा झटका मार के वो चेन लेके जाते थे उसको 379 सेक्शन लगा देते थे तो इट इज़ अ लेस पनिशमेंट है लेकिन इफ पर्सन इज कमिटिंग थेफ्ट और वो टाइम अगर वो फोर्स यूज करता है देन इट इज कॉल्ड एज अ रॉबरी इज अ मोर सेक्शन नाउ कमिश्नर हैज गिवन ऑर्डर कि इन ऑल चेन स्नैचिंग केसेस रॉबरी सेक्शन शुड बी अप्लाइड बिकॉज ही इज गिविंग फोर्स एंड ही इज snatching the chain that's why now they are chain snatching में रॉबरी भी लगाते हैं तो ये नॉर्थ रीजन में करंट ईयर में 134 केसेस रजिस्टर हुए उसमें से 77 डिटेक्ट हुए और 57% डिटेक्शन का है मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता ये ऑन रिकॉर्ड है देयर आर सम मस्ट बी अनरिपोर्टेड केसेस बट दिस इज प्रेजेंट स्टेटस लास्ट ईयर उसके प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थे 214 उसमें डिटेक्ट हुए 114 और डिटेक्शन 54% तो ये साल चेन स्नैचिंग कम हुआ HBT बाय डे 91 हुआ है उसमें 43 डिटेक्ट हुआ है 47% डिटेक्शन है प्रीवियस ईयर में 111 35 हाउस ब्रेकिंग बाय डे भी थोड़ा कम हुआ है 20 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट देखो ज़्यादा है लेकिन नाइट को ज़्यादा लोग सोते रहते तो रजिस्टर 477 detected 213 percentage 45 previous year HBT by night 470 है उतना ही है thefts में there are other thefts also thefts of vehicle pickpocketing etc it is other thefts 1129
Detected 337, percentage is very less, 30%. Previous year 1132, and that means उतना ही है. Pickpocketing, you know, pickpocketing, railways, buses, वहाँ crowded places से होता है. This is very less 18, out of which 12 are detected. I don't believe. Mostly case have not reported or not registered. 67% डिटेक्शन है कर पाएगी. प्रीवियस ईयर भी उतना ही है. स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करते हैं ऐसे लगते पुलिस. MV थ्रेट्स 668, MV थ्रेट्स बहुत बढ़ गए. 130 डिटेक्शन इज वेरी लेस. गाड़ी इधर से शुरू होती है, केरला जाती है, नेपाल जाती है, मालूम नहीं, मिलती नहीं मालूम. प्रीवियस ईयर भी उतना ही था, 24% डिटेक्शन था. नाउ आई विल टेल वेरी इंटरेस्टिंग केस थेफ्ट का. International theft. I was attached to Sar Airport police station. That time one Indian airline officer, Indian Airlines आता बंद था. Indian airline officer came to me and he has shown me the wireless. And told that they have received a wireless from Pakistan Karachi Airport manager that diamond necklace worth rupees 10 lakhs belonging to the United Arab Resident Advisor has been stolen. The flight had take off at Mumbai airport and landed at Karachi airport. As soon as flight is landed at Karachi airport, तो वो जो एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट के, उन्होंने देखा उनका बैग कट हुआ था. उसके अंदर वो 10 लाख का नेकलेस नहीं था. इसने 10 लाख का नेकलेस बैग में क्यों रखा? इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस एक्सेट्रा. देन Karachi, as he was the president advisor of UAE, Karachi police had taken it very seriously. At Karachi airport, case was registered, airport was closed. All the loaders and जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका सॉलिड इंट्रोगेशन हुआ उधर. दैट डायमंड नेकलेस वॉज नॉट रिकवर्ड and it remained undetected. One day I got information that some boys have entered in aircraft and they are committing some petty theft. So I rounded about 4 or 5 boys and they were brought for interrogation to Sar police station. Then I questioned them कि ये ऐसे तुम कितने बच्चे लोग एयरक्राफ्ट में जाके चोरी करते. तो सब एयरक्राफ्ट लँड होने के बाद हम लोग ऐसा त्यावेळेला एयरक्राफ्ट सार एयरपोर्टला हे नव्हती, भिंत नव्हती कंप्लीट. ते जरी मरी कुर्ला साइड के उधर से वो लोग जाते थे एयरपोर्ट के अंदर. और एयरपोर्ट लैंड होने जब पार्क होता था उधर ज़्यादा कोई रहता नहीं था, वॉचमैन वगैरह नहीं रहता. ये लोग बच्चे लोग चुप्पी से एयरक्राफ्ट में जाके और जो लोग साफ़ सफाई करते थे उनके साथ में जाते थे और वहाँ से जो भी पड़ा है वो लेके आते थे. तो आई हैव राउंडेड 4 to 5 बच्चे लोग. तो उनको पूछा कि बाबा ये तुम लोग कैसा चोरी करते, क्या करते, ये माल किसको बेचते और ऐसे कितने लोग हैं. तो उन्होंने बोला ये सब हमारे ये सब 25-30 लोग हम लोग करते. फिर मैं वो 25-30 लोगों को राउंड अप किया. एक महीना एक रात में सारे 25 लोग को लाया. तो मेरे पास तो कंप्लेंट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये तो बच्चे लोग थे और एयरक्राफ्ट में ये चोरी करने वाले थे. फिर वो लोग को इंट्रोगेशन में मैं बोला कि देखो इसने जिसने भी बड़ा चोरी किया है उसमें से एक आदमी, तुम इसमें एक आदमी है, तो मुझे बताओ कैसा चोरी है. तो वो आउट ऑफ 25 एक बच्चे ने मुझे बताया साहब एक लड़का है वो गायब है 15 दिन से, तो शायद उसने चोरी किया हो. फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके ये देखा वो बच्चा वाकोला में रहा. फिर हम लोग वाकोला गए तो वाकोला वो नहीं था उधर. फिर उसके माँ बाप को पूछा, बोले वो पुणे गया 15 दिन के बाद आया. फिर 15 दिन के बाद वो आया बच्चा. उसको पूछा कि तुमने क्या चोरी किया, हमको मालूम. एक्चुअली वी वर नॉट नोइंग कि उसने एक्चुअली क्या चोरी किया, लेकिन ऐसा इंट्रोगेशन में उसको पूछा. उसने बोला सर मैं जब एयरपोर्ट में ऐसा जब बैगेज लोड करते वो टाइम बैग को ब्लेड मार के मैंने एक हार चुराया था और वो मेरे खिस्से में भर के मैं घर में आया. और रात को जब मेरा झोपड़े में से वो लाइट आ रहा था स्ट्रीट लैम्प का, तो वो चमका तो मैं डर गया, सोया नहीं. बाद में सुबह सुबह उठ के मैंने मारवाड़ी को भेज दिया. तो मारवाड़ी ने उसको वो टाइम पे 75,000 रुपीज़ दिया. अभी लोडर आदमी उसको एकदम 75,000 मिलने के बाद वो पैसा लेके सीधा पुणे गया. उधर 30,000 का घर खरीदा, फिर पैसा उड़ाया, पिक्चर सब कुछ किया उसने, लेकिन फिर भी 30,000 बचा उसका. वो 30,000 के साथ में वापस आया था.
फिर हम लोग वो मारवाड़ी के पास गए, मतलब आपने कुछ हार लिया इसके पास से। वो शुरू में नहीं बोल रहा था, फिर बाद में एडमिट होगा मैंने इसके पास से एक डायमंड नेकलेस लिया है। उसके बाद में वो बोला मैं डायमंड बेचलेस पेडर रोड में एक बड़ा बिजनेस बन को दिया। फिर हम लोग पेडर रोड गए, पेडर रोड में उसने एक फ्लैट बताया, वो फ्लैट 8 रूम का फ्लैट था। हम लोग अंदर गए, एक पारसी आदमी आए बाहर, हम लोगों ने बोला मैं तो यूनिफॉर्म में था, हम लोग ये आदमी ने आपको कुछ बेचा है। बोले तुम पागल हो गए क्या, ये कोई भी रोड साइड आदमी मेरे पास आते, आई एम हैविंग 8 इंडस्ट्रीज, चीफ मिनिस्टर मेरे घर में आता है, हो इधर से लिटरली ये लास्ट मिनट को आ गई। फिर वो रिसीवर को हम लोगों ने बोला अरे ये तुम झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी है और इधर पेडर रोड में तुम कैसा बेचा, वी डोंट बिल। मैं बोला साहब इसको ही दिया, मेरे को काट डालो लेकिन मैं हार इसको ही दिया। फिर उसने दरवाज़ा लगा था, फिर मैं चलो एक आइडिया करेंगे, मैं वापस दरवाज़ा लगा खोला, बेल दबाया, तो वापस पारसी आदमी है, मतलब देखो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये आदमी ने आपको जो हार बेचा है वो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है यूएई, उसका एडवाइज़र का। तो हम लोग अभी ये जितने भी हम लोगों ने अरेस्ट किए उनको अभी हम दुबई पुलिस के हवाले करने, यूनाइटेड अरब पुलिस के हवाले करेंगे, और उधर इंट्रोगेशन में आपका नाम है हमका, आपको सीधा दुबई और या इमिरेट्स में जाना पड़ेगा। वो डर गया होगा, नो दुबई पुलिस, कम त्याने आम्हाला आतमध्ये अंदर बुलाया। फिर बोला हार मेरे पास है, लॉकर में सुबह दूँगी। देन दैट नेकलेस वॉज रिकवर्ड। नेकलेस रिकवर्ड होने के बाद फिर यूनाइटेड अरब प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी को वो टाइम ये किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस का, इंडियन पुलिस एक टेलीग्राम भेजा, एंड दैट केस वॉज डिटेक्टेड बिकॉज उनका प्रेस एडवाइजर का उनका सेक्रेटरी आके वो लेके गया। अभी थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल, मैं घाटकोट पुलिस स्टेशन में था 1976 में। एक सरदार जी टैक्सी ड्राइवर आया, बोला साहब मेरा टैक्सी चोरी हो गया। तो व्हीकल थेफ्ट होने के बाद हम लोग सब डॉक्यूमेंट लेके उसका पहला एफआईआर ली। एफआईआर में सब गाड़ी का डिस्क्रिप्शन, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, डिस्क्रिप्शन लेते गाड़ी का, तो उसका टैक्सी चोरी हो रहा। और फिर कंट्रोल को वायरलेस मैसेज करके ऐसी गाड़ी चोरी हो गई, और फिर नोटिस में छप के आते कि ऐसी गाड़ी चोरी होती है। फिर ट्रैफिक वाले को नंबर जाता है, और फिर वो नाके पे वो लोग टैली करते हैं, ऐसे कोई दिखते कैसे। The case was registered and 15 days there was no trace. After 15 days the सरदार जी himself came back. ओह मेरा गाड़ी मिल गया। अरे मतलब चोरी हुआ, मिल गया, यार कंप्लेन, यार डिटेक्टिव, मतलब कैसा मिला तुमको? बोला वो चेंबूर में खाड़ी है, उधर मेरा गाड़ी पड़ा। अरे मतलब वो गाड़ी उधर कैसा गया और चोर ने उधर क्यों छोड़ा? मैंने आप मेरे साथ चलो पंचनामा करो। देन वी वेंट टू चेंबूर, उधर जो सैन पनवेल पे जो क्रिक है अभी, उधर काफ़ी झोपड़पट्टी है, उधर वो क्रिक में वो टैक्सी ऐसी उल्टी पड़ी थी, उसके जो व्हील से ऊपर टॉवर्ड्स का है और ऐसी उल्टी पड़ी थी। ये साला चोर ऐसा क्यों, इतना मेहनत क्यों करेगा, उल्टी क्यों करेगा? तो वी गॉट डाउट। देन दैट टैक्सी वॉज स्टोर्ड एंड ब्रॉट टू घाटकोट पुलिस स्टेशन। हम लोगों ने टैक्सी चेक किया, बाद में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को बुलाया, ये टैक्सी चोरी का हुआ क्या कंप्लेंट दिया है और ये उल्टा करके रखा था, हमको ज़रा डाउट है, आप ज़रा चेक करो बराबर। तो उन्होंने इंजन ऑयल बाहर निकाला, तो इंजन ऑयल वो बाहर निकाल नहीं सके, इतना वो गाढ़ा हुआ था। बोले सर दिस टैक्सी वाज नॉट ऑन द रोड फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो ये आपके पास उसने झूठा कंप्लेंट दिया है। फिर हमने वो सब रिपोर्ट बना के वो केमिकल एनालिसिस को ऑयल भेजा, एंड द केस फाइनल रिपोर्ट में हम लोगों ने इट इज़ अ फॉल्स केस। उसको इंश्योरेंस नहीं मिला। बाद में उसने बहुत ट्राई किया कि साहब वो फॉल्स केस नहीं है, सच केस है। बोला आपको क्या बोलने का है, आप कोर्ट में जाके बोलो, लेकिन आपकी केस हम क्लोज कर रहे थे, बी क्लासिफिकेशन, दैट इज़ मैलिशियसली गिविंग फॉल्स कंप्लेंट। तो चोरी का केस हुआ तो कोई देयर आर सम इंटेंशन लोगों का, हर का सच्चा चोरी है क्या झूठा चोरी है, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। फिर मैं जब सांताक्रूज में था, एक शॉपकीपर था, हर मार्च में उसका शॉप टूटने का और हाउस ब्रेकिंग का केस देने का। तो उसका 5वीं बार जब हाउस ब्रेकिंग हुआ तो मुझे हवलदार ने कान में बोला, सर मतलब ये हमेशा हर मार्च में आके कंप्लेंट देता है और उसका शॉप का पीछे का जो दीवार है वो टूटा रहता है और नौकर वो दिन कोई सोता नहीं उधर, ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ है।
देन आई स्टडीड एंटायर थिंग, फिर देखा स्टैटिस्टिक्स उसका सारा FIR ये करके, तो मार्च के लास्ट वीक में इसका बराबर चोरी होता था और कुछ आइटम ये वो सब मिला के इतना हज़ार, फिर उतना हज़ार का उसको इंश्योरेंस मिलता था, लाख का जो भी है इंश्योरेंस मिलता था। लेकिन वो केस मैं आईओ को बोला कि तुम ऐसा इन्वेस्टिगेट करो, सारे सर्कमस्टेंसेस मेंशन करो और डोंट इंश्योरेंस को जो लेटर आता है कॉपी दो उसमें मेंशन करो कि दिस केस अपीयर्स टू बी फॉल्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, और वो सारे पुराने केस पेपर वगैरह लगाए, उसको वो साल इंश्योरेंस नहीं मिला। वो आके वो बहुत तमाशा किया पुलिस में कि मैं झूठा नहीं, मैं सच है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज आर्ट, तो आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्यों केसेस दे रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। पॉलिसी का इंश्योरेंस निकाल, हाँ इंश्योरेंस का पॉलिसी था, हर साल इंश्योरेंस में क्लेम करता था वो। ये ऐसे ही सब लोग बड़े हुए हैं। इंश्योरेंस वाला तो सोच सकता है हर एक साल में कैसे करते हैं। इंश्योरेंस वाला मैनेज रहता है ना, दे परसेंटेज रहता है। का भी लिंक होता है। हाँ वो टैक्सी का केस में हाँ क्या फायदा मिला? वो तो जो बुक खुदा के आपको बताया कि वो उसका टैक्सी मिल गया है। मिल गया, हाँ। करना था ना। ही वांटेड टू क्लेम इंश्योरेंस। Even if you have to claim insurance, even if you were not to come to you, the position would have been the same. हाँ करेक्ट। Then so why he would have come to you and say I am पुलिस से नहीं इंश्योरेंस का क्या खाली गाड़ी चोरी है उसका नहीं रहता है, फिर वो ये मिसिंग वो मिसिंग ये डैमेज, ऐसे वो पार्ट्स के रहते हैं वो लोग, इसमें डैमेज बिमेज बता के ही वांटेड टू क्लेम सम इंश्योरेंस। एक्चुअली वो गाड़ी वाज नॉट ऑन द रोड, उसने जाके फिर वो जब लेके गया वो, तो इंश्योरेंस वाले को बताया मेरा अंदर का ये पार्ट नहीं वो पार्ट नहीं है, लाइक दैट ही हैज़ गिवन सम डिटेल्स टू द इंश्योरेंस पीपल। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में खाली MV इंस्पेक्टर ने ये ऑयल निकाल के प्रूव किया कि दिस व्हीकल वाज नॉट ऑन द रोड। तो ये जो केस है 4 दिन पहले चोर लेके गए, इट इज़ फॉल्स, आई वी हैव प्रूव दैट इट इज़ फॉल्स केस। आप लोग प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते इंश्योरेंस का। हाँ इंश्योरेंस कंपनी हमको लेटर लिखता है कि इसका कैसा केस का FIR का कॉपी दो और फाइनल रिपोर्ट दो। हम फाइनल रिपोर्ट में लिखा था, वो रिपोर्ट लगाया था कि इट इज़ फॉल्स केस करके, तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिला। पुलिस ने अगर क्लियर फाइनल रिपोर्ट दिया कि ये चोरी हुआ और चोर नहीं मिल रहा है, तो उसको इंश्योरेंस मिलता है, वो क्लासीफाई होने के बाद। अभी हर केस में चोर नहीं मिलता है, तो उसमें एक प्रोसीजर रहता है। अननोन पर्सन नहीं, अगर अननोन पर्सन ने चोरी किया तो पुलिस समझो कितना दिन इंतजार करेगी, कितना दिन इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वो केस क्लासीफाई होता है, दैट इज ए क्लासीफाई। वो कानून में नहीं है, वो हाई कोर्ट मैनुअल में हो। ए मीन्स दैट इज ट्रू बट अनडिटेक्टेड, वो क्लासीफाई होकर उसका तपास बंद होता है, और उसमें ऐसा लगता है इफ दिस एक्यूज विल बी ट्रेस देन दिस केस विल बी रीओपन, दिस इज कॉल्ड एज ए समरी। देन बी समरी मीन्स मैलिशियसली गिविंग फॉल्स कंप्लेंट, अभी जो बताया वो फॉल्स कंप्लेंट। और सी समरी मीन्स नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, यानी आप घर में से निकले, ऑफिस गए, ऑफिस में जाने के बाद देखा और आपका पॉकेट नहीं है, आपने जाके ऑफिस के उधर जाके चोरी का केस दिया, रात को घर में गए, बीवी ने बोला अरे आपका तो पॉकेट इधर ही पड़ा है। अभी ये केस नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स में बैठा है, फिर इसका डिस्पोजल क्या है? अभी आप फॉल्स कंप्लेंट दिएगा, नहीं दिया, इट इज़ बाय मिस्टेक, आपने जाके वो आपको लगा कि चोरी हुआ तो आपने कंप्लेंट दिया और घर में जाकर आपको मिला, तो दिस इज कॉल्ड एज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। दिस इज हैज़ बीन, उसको समरी बोलते हैं, सी समरी, ऐसा उसका वो क्लासिफिकेशन। जिसमें एक्यूज मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, उसका वो चार्जशीट होता है। कोर्ट ही करता है सामान्य। समरी कोर्ट ही करता है, पहले ACP करते थे, हाँ। अभी ACP से पावर निकल लिया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को नहीं होता था। अगर आपका समझो चोरी का केस हो गया और पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, चोर मालूम होके भी पकड़ा और प्रॉपर्टी रिकवर नहीं किया, देन कोर्ट इश्यूज नोटिस टू कंप्लेनेंट कि पुलिस ने आपका केस क्लासीफाई के लिए डाला है, आपको क्या कहना है। फिर कंप्लेंट बोला कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, चोर पकड़ा, मेरा प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिला, फिर कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती। ये अभी रिसेंटली चालू हुआ है 10 साल पहले, री इन्वेस्टिगेशन। सी समरी, बी समरी नहीं, ABC सारे कोर्ट ही करता है। कोर्ट ही करते। बी समरी खाली पुटअप अप्रूव करने के लिए DCP के पास जाते हैं। बी समरी इज मोर सीरियस क्राइम। बी समरी हम लोग पुटअप नहीं करते, हम DCP के थ्रू पुटअप करते हैं, कोर्ट में करता है कोर्ट ही। कोर्ट में आपका समझो घड़ी चोरी हो गया, घड़ी चोरी होने के बाद चोर पकड़ा गया, घड़ी मिल गई, बाद में अभी आपको घड़ी वापस चाहिए, बट यू विल नॉट गेट दैट रिस्ट वॉच अनलेस
कोर्ट गिव ऑर्डर, यू हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी। फिर कोर्ट आपको पूछे, चोर को नोटिस देगा कि ये घड़ी तुम्हारा है क्या। अगर चोर बोला नहीं मेरा घड़ी है, देन यू विल नॉट गेट योर घड़ी। यू हैव टू क्लेम, यू हैव टू आइडेंटिफाई द घड़ी। फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, आपका नाम इनग्रो करके थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, आपका ही घड़ी है करके। और ये चिंदी चोर रहते हैं, वो लोग क्लेम नहीं करते, वो प्लीड गिल्टी केसेस रहती। लेकिन कोई एडवोकेट सिखा के बोलता है नहीं अपना ये करके बोलो, तो वो डिस्प्यूट में डालता है, फिर मिलता नहीं वो। और आपको प्रॉपर्टी बॉन्ड के ऊपर मिलती है, और जब ट्रायल चलता है आपको वो प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। फिर वो प्रॉपर्टी आरोपी और सब स्टेटमेंट पंचनामा देख के वो उसके ऊपर उसको ट्रायल में सज़ा मिलती है। तो ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, अभी मैं आपका अरुण ऐरणे का जो किस्सा बताया रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी केस कब चलेगा, कोर्ट जामीन पे, आरोपी जामीन पे जाता है, फिर सालों साल पड़ा रहता है, फिर आपका प्रॉपर्टी आपको कैसा मिलेगा। इसलिए देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ कि यू कैन अप्लाई फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी अंडर 451 CRPC। और चार्जशीट होने के बाद फिर लिमिटेशन पीरियड रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको एडवोकेट लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन मीन्स कितना साल अंदर में हमको नहीं, जब कोर्ट में ट्रायल आएगा, स्टार्ट होएगा ट्रायल, दैट टाइम यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अगर वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के में आपको बॉन्ड के ऊपर आपको प्रॉपर्टी देते कि ये प्रॉपर्टी आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो जब ट्रायल चालू होगा, और आप वो प्रॉपर्टी समझो वापस चोरी हो गया या गुम हो गया, देन वो जो बॉन्ड रहता है 1 लाख 2 लाख आपको कोर्ट में भरना पड़ेगा। तो बहुत से लोग क्लेम नहीं करते, जान दो बोले होगा, देखा जाएगा मुद्देमाल प्रॉपर्टी मुद्देमाल पर कोर्ट में ऐसा पड़ा रहता है वो। जैसे आजकल मोबाइल बहुत चोरी होते हैं, तो पुलिस FIR लेने की जगह ऐसा लिख के देती कि कहा जा रहा है, ऐसा करके दे देती है, तो उस पर इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी देखो, ये चोरी और मिसिंग, अभी आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपका खीसे से गलती से गिर गया और आप चले गए, आपको मालूम नहीं चोरी हुआ कि मिसिंग हुआ, तो FIR लेने के लिए फिर पुलिस को क्या क्राइम बढ़ता है, ये बढ़ता है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि ये इनका ट्रेन में गुम हो गया, इनका बस में गुम हो गया, ऐसा करके वो सर्टिफिकेट देते और उसके ऊपर आपको मिल सकता है। आपको हर एक चीज़ में आपको FIR नहीं मिलता है। इंश्योरेंस वाला बोलता तुम FIR लेके आओ, पुलिस बोलती है हमारा सर्टिफिकेट हो, आपको इंश्योरेंस मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ, इंश्योरेंस मिल जाता है। सर इन द पर्टिकुलर कभी समझो किसी के हार्ड डिस्क चोरी हो गई, पुलिस ने रिकवर किया, हार्ड डिस्क अगर उसको वापस नहीं मिला तो क्या होगा कि विदिन ए शॉर्ट टाइम में वो वर्किंग भी बंद हो जाएगा? नहीं, पुलिस क्या करती है, हार्ड डिस्क अगर समझो आपका जब्त किया तो वो हार्ड डिस्क में जो भी होता है वो इट इज़ सेंड टू फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, उसमें जितना भी कंटेंट्स होता है वो सब प्रिंट आउट होके वापस आता है और आप हार्ड डिस्क बाद में क्लेम कर सकते हैं। वट एवर थिंग्स आर टेकन, उसमें एक क्लॉज है कि जब तक केस चलेगा, जब तक केस चलेगा तब तक आपको वो रखना पड़ता है, आप बेच नहीं सकते। वही मैं बताया ना मैं कि आपको दैट इज एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यू कांट। बट सब कंसीडर सर, आपका 10 हार्ड डिस्क चोरी हो गया, अगर आपको वो 10 साल केस चला और 10 साल के बाद तो इट इज़ ए टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। करेक्ट। 10 साल के बाद उसका वैल्यू तो नील हो जाता है। करेक्ट। तो इसमें देयर इज अ प्रोविजन, कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये जो हार्ड डिस्क है उसमें जितना भी कंटेंट्स है दैट शुड बी एनालाइज थ्रू लैबोरेटरी। Okay. और वो एनालाइज होने के बाद वो हार्ड डिस्क आप बॉन्ड पे ऊपर क्या क्लेम सकते हैं। नहीं, अच्छा बॉन्ड के ऊपर बेच बॉन्ड सकते के हैं। ऊपर आप मिल सकते हैं आपको वापस। नहीं, बेच नहीं सकते ना। हाँ, बेच तो नहीं मेरा सकते, क्या लॉ ऐसा है। हाँ, मेरा क्या कहना है, जब 10 साल के बाद केस उसके- चलेगा तो तुम कौन सा भी 10 डिस्क चाहिए तो भी चलेगा ना, उसमें हाँ, क्या रहता है, उसमें- कंटेंट्स आर टेकन आउट। But sometimes case is going on for 15, 20 years also. फर्क नहीं पड़ता है ना कुछ। No, you cannot sell it. My question is, you cannot sell it. Correct. Then what will happen? कानून आर नॉट सपोज टू डिस्पोज इट ऑफ, यू हैव टू टेक इन बॉन्ड, कोर्ट बॉन्ड लेती है आपको कि वही प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रायल आई विल प्रोड्यूस। That is very difficult at the. अभी कानून ही ऐसा है ना। But if that call comes after 20 years, then 20 years लगता नहीं है जनरली, लेकिन अगर 20 years आया या कुछ भी हो, कानून अरे साहब, मेरा एक check bounce का case है, it is 21 has years. been stolen and you have taken on bond, you have to produce the same, that is the evidence before the court. If the person Yeah. dies in between, then how Huh? if the person No, that is. person has given the bond, He expires, he Ah. dies, then how does the court recover? Who is responsible for return? Theirs? If the person dies during before the trial,
द कंसर्न पर्सन जो भी होगा उसका घर का, वो प्रोड्यूस करेगा कि डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा और वो एफिडेविट करेगा कि तो उसने प्रॉपर्टी किधर रखा हमको मालूम नहीं है, तो कोर्ट विल कंसिडर इस पॉइंट, यू हैव टू गिव प्रूफ। सर आपको पता है एनडीपीएस के जो नार्कोटिक्स पकड़ते हैं ना, वो मुद्देमाल प्रॉपर्टी में कहीं वापस वो डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज जला के देता है। बराबर, और बेचते भी कभी कभी लोग, उसमें लफड़ा भी होता है बहुत। आई नो सर, मुद्देमाल प्रॉपर्टी सिंस 20 इयर्स 25 इयर्स अभी तो कस्टडी में है। ये पुराना में कैसे वो ट्रायल चलेगा तब तक वो रखना ही पड़ेगा। हो गया, लेता नहीं है, आता नहीं है। और सब दूसरा ही बता अच्छा अच्छा, सर टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, सर, कौन सा नार्कोटिक्स का? नार्कोटिक्स नहीं, जैसे पुराना में कैसेट था ना, कैसे। हाँ बराबर, मेरा समझ में आया पॉइंट। अभी मुद्देमाल प्रॉपर्टी अभी समझो कोर्ट में कन्विक्शन लगा या छुटा, अच्छा इन टेक्नोलॉजी एक सेकंड ना, इनका मैं पहला सवाल का जवाब। अभी आपका मुद्देमाल प्रॉपर्टी समझो आरोपी को क्लासीफाई हुआ या छूटा या जो भी है, तो अपील पीरियड रहता है, अपील पीरियड के बाद कोर्ट ऑर्डर देता है डिस्पोजिट ऑफ करके, कोर्ट गिव्स ऑर्डर टू डिस्पोज द सेड प्रॉपर्टी, अपील पीरियड होने के बाद। But sir, in this particular law, there is a change is required. See, a person who purchase one technology thing at the cost of 1 lakh rupee, after 10 years or 15 years, when the case complete, its value is hardly 100 rupees. Correct. Who will now who is responsible for that loss? Instead of doing complaint, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो कम से कम बेच सकेगा। ना आपको मैं आपको वापस बोल रहा It's हूँ, a आपका जो भी wrong in law. कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स है, हाँ। उसमें अभी फॉरेंसिक लैबोरेटरी में जाके तुम्हारा हार्ड डिस्क में जो भी है वो तो डेटा तो मिला। नहीं, वो एक्सट्रैक्ट करके और आपको हार्ड डिस्क वापस बॉन्ड के ऊपर मिल सकती है ना, 10 साल उधर रखने की जरूरत नहीं है। नहीं हार्ड डिस्क नहीं, अभी समझो कोई शॉप है, ब्लैंक हार्ड डिस्क पड़ी है 10, बराबर है, वो चोरी हो गई, वो रिकवरी भी हुई, उसमें डेटा कुछ नहीं है, बराबर है, उसको तो बेचने के लिए रखा था, उसकी कॉस्ट 10 लाख है। एक्यूज मिला क्या? एक्यूज मिला, बराबर है, सब हुआ। अभी आज उसकी वैल्यू है ना 0 हो जाती है। करेक्ट। तो यू हैव टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट कि इसका 10 साल के बाद मैं यह प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कोर्ट विल गिव सम ऑर्डर, बट अकॉर्डिंग टू लॉ 451 IPC, हाँ, you have to court has power Yeah. of disposal of the property. Police has no power of disposal of the property. इंश्योरेंस मिलेगा, हम उनका बात सुनने के लिए बैठे, हमारे आपस में डिस्कशन के लिए नहीं बैठे। मैं एक हाँ, So can theft of anything can be reported to the police? anything Anything. I mean, very simple things. anything means Anything. I mean, 2 weeks back from outside my home, we have a shoe rack. My 2 branded slippers got stolen. Now I really don't understand like what exactly I complained to the No. society members. slippers were stolen from which place? My home, outside my home, From house or outside the house? outside. Outside it is No, 370. not at all, flat. We have a shoe rack which is like Right. besides the door. Then it is a case of 379 IPC. Go and lodge FIR. Okay. I complained to the society members. They showed me the camera inside the lift. अभी अगर उसने steps use किया रहेगा तो कैसे समझेगा? जनरली क्या है, आपके पास सोसाइटी में ये होगा ना CCTV कौन आता है, हाँ, वही, हाँ, exactly. उससे तो आप ट्रैक कर सकते हैं। My point was इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेटिंग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि कौन चोर आप ढूंढ सकते no, but my point was, can this be reported to the police? Will they entertain हैं। this? You have to report anything. Just because स्लीपर थे तो बोलेंगे अरे हाँ चोर है ना, तो क्या हुआ? एक सेकंड ना, ये जो अभी का बात नहीं है, कुछ साल पहले देयर वर क्रिमिनल ट्राइब्स, कंजार भाट, ये वो क्रिमिनल ट्राइब्स, वो आदिवासी लोग रहते, तो उनका मेन प्रोफेशन क्या था? चोरी करने का। तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब के एक मेरा दोस्त है, वो पुलिस में भर्ती हुआ, तो वो जब बचपन में जब वो पर्टिकुलर कास्ट का था, जब वो बड़ा हो गया तो उसको उसके पेरेंट ने बोला जाओ चोरी करने को सीखो, अभी तुम चोरी करो। फिर वो गया, फिर मंदिर के सामने 2-3 चप्पल उठा के लेके आया, फिर उसका वो कम्युनिटी में सत्कार होगा, ये बोला चोरी करने में सक्सेसफुल हो। ऐसा एक इंसिडेंट मेरे को याद आ गया। लेकिन कोई भी चोरी हुआ तो वो 379 IPC के सब इंग्रेडिएंट्स है,
विदाउट आपकी कंसेंट लिए क्या नहीं, आपका पोजीशन लेके गया 379 IPC। सर ये कोई प्रॉपर्टी रहेगा उसके अंदर गुड्स कोर्ट ने सील किए रहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी और के पास रहेगा, तो अभी उसमें से जो गुड्स में से कुछ चोरी हुआ रहेगा तो उसका थेफ्ट किधर करने का? जिधर से चोरी हुआ वो लोकल पुलिस स्टेशन में, वो लोकल पुलिस स्टेशन से भी चोरी होता है, कोर्ट से भी चोरी होता है। अच्छा, इट डिपेंड। अभी जो आप मुद्देमाल रखते, सार पुलिस स्टेशन में एक मुद्देमाल रखा था, तो वो जो हवालदार था वो चोर था, वो 2-3 मुद्देमाल लेके बदले के बाद वो लेके गया। जब केस ट्रायल में यार मुद्देमाल किधर नहीं है, फिर वो हवालदार को ढूंढ के उसको अरेस्ट किया। अच्छा, उसमें कोई लिमिटेशन है? हाँ, लिमिटेशन है उसमें? लॉ ऑफ लिमिटेशन है, चोरी होने के बाद जितनी सजा है उतना आपको वो पीरियड में कंप्लेंट करना पड़ेगा। अभी समझो आज चोरी हुआ तो आप 10 साल के बाद कोर्ट में आ सकते हैं, मेरा 10 साल पहले चोरी हुआ था, देयर इज लॉ ऑफ लिमिटेशन। सजा कितना है? 3 साल, तो 3 साल के अंदर आपको ये करना है। जनरली यू हैव टू गिव कंप्लेंट अर्ली कंप्लेंट देगा तो अर्ली इन्वेस्टिगेशन होगा, अर्ली जस्टिस मिलेगा। ओके, डिले इन्वेस्टिगेशन तो सब डिले फिर। और लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंडर आपको एक छोटा केस बताता हूँ, चेन स्नैचिंग का। तो सारा केस मेरे पास पड़ा है, अभी मेरे को एक एक केस बताने का। इन 1975 ये मेरा पहला केस है। जब मैं स्टेशन हाउस का था, शाम को 6:30-7 बजे 10-12 लोग आए भागते भागते, बोले साहब चेन स्नैचर को पकड़ा है हम लोगों ने, और वो जगह पे है राजावाड़ी हॉस्पिटल घटकोर के पास, आप जल्दी चलो। फिर उनके साथ में मैं गया, चेन स्नैचर को पब्लिक ने ऐसा मस्त मार भिर के उधर कोने में बिठाया था। अरे बोले चेन किधर है? बोले हम लोग ढूंढ रहे, चेन नहीं मिल रही है। फिर मैं वो लोगों ने सब लोगों को ढूंढने को लगाया, चेन नहीं मिली। फिर उसको पुलिस स्टेशन में लाया, बोले चेन किधर है? बोले मैं फेंक दिया उधर, मेरे पास चेन नहीं है। बाद में रात को 2 बजे उसने कंप्लेंट किया मेरे को दुख रहा है पेट में। फिर उसको राजावाड़ी हॉस्पिटल लेके गए तो एक्सरे में उसका पूरा वो चेन आ गया, दिखा वो चेन। फिर डॉक्टर ने उसका वो दवा बिवा रेचक बिचक देखे, वो दूसरे दिन वो चेन रिकवर किया। फिर हम लोगों ने पंचनामा करके वापस किया। फिर मैं कंप्लेंट को बुलाया, मतलब आपका चेन मिला है तो आप ये क्लेम करो। बोले मुझे क्लेम नहीं करने का। अरे मतलब आपका इतना सोने का चेन इतना वैल्यूड है, बोले हमको गले में डालते हम लोग, वो कौन सा जगह से रिकवर हुआ हमको मालूम है, मेरे को चेन मांगता ही नहीं। दैट कंप्लेनेंट डिड नॉट चेक द चेन। बाद में वो गवर्नमेंट जमा हुआ, उसको एक्शन हुआ, लेकिन उसने लिया नहीं चेन। इट वॉज इंटरेस्टिंग केस। दूसरा एक आपको केस इसके लिए तो पैसा मिल रहा है। हाँ, ऑक्शन में बेचता था। मैं उनको बोला कुछ बेचो ये करो, बोले हमको मांगता नहीं, उसका पैसा नहीं मांगता हमको। ऐसे लोग रहते हैं कोई प्रिंसिपल के। अभी एक चैलेंजिंग हाउस ब्रेकिंग केस मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज अटैच टू MIDC पुलिस स्टेशन 1985। तो एक सिप्स करके एरिया है, सांता क्रूज प्रोसेसिंग जोन। तो वहाँ एक टंडन करके बहुत फेमस कंपनी, तो उनको अमेरिका से लेड पार्ट्स आते थे। ऐसे वो लेड मालूम रहता ना, वो अमेरिका से आते थे, इंडिया में वो बनती नहीं थी। और कंपनी में 2000 लोग काम कर रहे थे। और एक दिन उनका सिक्योरिटी ऑफिसर बोला कि हम लोगों ने स्टॉक लिया तो उसमें से हमको 85 में 6.5 लाख का वो पार्ट्स कम आ रहा है। कंपनी 24 आवर्स चालू है। देर आर एट द गेट्स देर आर वॉचमैन, पूरा एयर कंडीशन कंपनी, 2000 लोग काम कर रहे। और सारे कंपनी के गेट्स के ऊपर वॉचमैन है, किसी को चेक करने बगैर वो छोड़ते नहीं। बाहर शिप्स का जो मेन गेट है उधर भी चेकिंग होता है, वो माल जाते समय वो सब बनाते। अभी दैट वॉज चैलेंज, 2000 आदमी और चोरी हुआ है 6.5 लाख का, कैसा ओपन करने का। फिर मैं मेरा स्टाफ को लेके गया, मैं वो देखा 2000 लोग, मतलब अभी मैं किसको पूछूँ कौन चोर है, कैसा ढूंढने का, इधर वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैं वो स्टोर वाले को बुलाया, ये आपका जो लेड पार्ट है वो कैसा किधर से आता है, मेरे को पूरा ट्रैक बताओ अप टू मैन्युफैक्चरिंग में कैसा जाता है। तो वो बोलता है इधर हम स्टोर करते हैं, बाद में इसके पास जाता है, बाद में इसके पास जाता है, बाद में इसके पास जाता है। उन वो लोग को कभी शॉर्टेज बिटेज नहीं मिलेगा। बोले हम लोग हमेशा नहीं करते, साल में एक बार करते थे। ये साल में हमको 6.5 लाख का शॉर्ट मिला है। अभी वो जिनके हाथ से प्रोसेस हो वो भी 100 लोग थे। हमें मतलब 100 लोग को कैसा इंटरव्यू करने का, अरे तुमने चोरी किया क्या, हम पूछ भी नहीं सकते। और कैसा डाउट लगा, ऑल एजुकेटेड, सब वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वो। इन्वेस्टिगेशन वाज चैलेंज। फिर मैं मतलब ये इन्वेस्टिगेशन अंदर करके कुछ फ़ायदा नहीं, इसको बाहर कुछ करना पड़ेगा।
फिर उनका जो पार्ट्स लिया सैंपल में, उनका एक इंजीनियर को, सेल्फ इंजीनियर को बुलाया, बोले ये पार्ट्स किधर मिल सकता है? बोला इंडिया में किधर भी नहीं मिलेगा। फिर वो बोला एक जगह है उधर मिल सकता है, बोले चोर बाज़ार में मिलेगा। बोले ये किधर माल बेचा जाता है? बोले ग्रैंड रोड में ये सब मार्केट है, उधर आपको माल मिल सकता है। फिर मैं और वो इंजीनियर हम लोग ग्रैंड रोड में गए। वी विजिटेड 25 शॉप्स, वो लेड पार्ट लेके। वो जो सेल्स में, जो कंपनी का सेल्स ऑफिसर था, वो बना एक कंपनी का मालिक। बोला मेरा नासिक में कंपनी है, ये मेरे को पार्ट्स चाहिए और आप दे सके भैया? तो नहीं रे, ये तो इम्पोर्टेड, ये नहीं मिलेगा। तो एक दुकान वाला बोला ये मेरे पास बहुत माल पड़ा है लेकिन इधर नहीं, मैं कल्याण में रखा है। फिर हम उसका बोला तुम कल्याण से ले गए, हम पूरा माल खरीदेंगे, कितना पैसा है ये सब, उसके साथ बात किया। फिर दूसरे दिन हम लोग शॉप में गए, ट्रैप लगाया मैं पूरा, वो उसने पूरा दुकान भर के पूरा माल लाए, वैसे LED के बॉक्सेस। फिर ये सेल्स मैनेजर बोला दिखाओ, माल देखा, वो बोला था अपना ही माल है। फिर दुकानदार को बोला ये माल आप किधर से लिया, ये रिसीट बताओ। बोला रिसीट नहीं है। बोले मैं ऐसा ब्लैक में लिया। बोले किससे लिए बताओ ना। मैं बोले वो नहीं बताऊँ। बोले ये चोरी का माल है। बोला हो सकता है लेकिन मेरे पास एक मारवाड़ी है, उसने मेरे को दिया। तो किधर है मारवाड़ी? बोले कल्याण में। तो उसने झूठा बोला, एक्चुअली उसका पार्टनर था वो। फिर वो कल्याण का मारवाड़ी को पकड़ा। बोले ये भाई ये माल आपके पास जो आया है कैसा है आपके पास, कौन है ओनर इसका रिसीट किधर है, बिल किधर है? तो वो कुछ बता नहीं सके। देन दे वर ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन। फिर लास्टली उन्होंने एडमिट किया कि हम ये चोरी का माल खरीदे थे। फिर उन्होंने आपको कौन बेचा? तो बोले MIDC में एक मारवाड़ी है, उसने हमको बेचा माल। फिर हम लोग वो MIDC का मारवाड़ी को उठाया। मतलब तुम ये माल इनको बेचा है, सही है? बोला बेचा है। मतलब तुमको कौन देता था? बोला मुझे वो कंपनी से एक लड़का आता था टिफ़िन भर के, वो मेरे को डेली बेचता था, 1 साल से मेरे को बेचता था। मैं 1 हफ्ता भर जमा करके ये मारवाड़ी को जाके बेचता था ग्रैंड रोड में। फिर वो लड़के को ट्रेस किया हम लोगों ने मरोड़ में। लड़का क्रिश्चियन लड़का था, उसकी माँ एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल थी। फिर हम उसके पेरेंट्स को मिले, मतलब आपका बेटा हम पुलिस को इंट्रोगेट करना चाहती है, कहाँ है वो? बोले वो क्लास को गया, अभी आएगा। लेकिन पुलिस क्यों इंट्रोगेट करना चाहती है? मतलब एक थेफ्ट केस है, उसका खाली हम लोग स्टेटमेंट लेंगे, छोड़ देंगे। नहीं बोले पुलिस स्टेशन में आएगा ना लड़का, आई एम प्रिंसिपल, यू कांट टेक माई सन, ये वो। मतलब 1 मिनट के लिए आप आ जाओ पुलिस स्टेशन में, खाली आपको तुरंत छोड़ देंगे। फिर वो पेरेंट्स बच्चे को लेके आ गए, 22-23 साल का लड़का था। फिर मैं उसको पूछा आपने टिफ़िन बॉक्स में कितनी बार ये लेड पार्ट्स दिया मारवाड़ी को? बोला सर डोंट ब्लेम मी, आई एम एजुकेटेड, आई एम नॉट अ थीफ, आई विल प्रोसिक्यूट यू, मैं डिफेमेशन केस करूँगा, ऐसा उसने मेरे को दम दिया। इंट्रोगेशन होने के बाद मतलब हो गया तुम्हारा? फिर मैं सब मारवाड़ी को लाइन से खड़ा गया। मतलब इसको किसको पहचानते हैं? वो मरोड़ का मारवाड़ी उसने देखा, अरे बाप रे, बोला साहब मैं चोरी किया है। तो उसका माँ को बोला देखो ही इज एडमिटिंग चोरी किया करके। तो इसमें पूरा रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। वो 2000 लोग हैं तो वी कांट बोलो कि मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, किसको पकड़ूँ मैं। इट डिपेंड अपॉन दी इंटरेस्ट टेकन बाय द पुलिस। पुलिस अगर इंटरेस्ट लेती है तो आपका हर एक केस डिटेक्ट होगा। चोर वजह से कुछ खरीद करेगा तो प्रॉब्लम। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट ऑफेंस। ये चोर बाजार जो है ना, जितने भी लोग बैठते थे, वो पुलिस जाके सारे चोर को अरेस्ट कर सकती है। 411 IPC के अंडर द पर्सन हु रिसीव्स स्टोलन प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, अगर वो किसका प्रॉपर्टी बता नहीं सकता है तो ही इज अरेस्टेड अंडर 411। पुलिस जब कुछ भी प्रॉपर्टी रिकवर करती है, कभी वो मारवाड़ी को बेचती है या किसको भी बेचती है, तो रिकवर करते समय हम वो रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी को हम अरेस्ट कर सकते हैं 411। लेकिन जनरली करते नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग विटनेस रहते। लेकिन जो हैबिचुअल रहते हैं उसको हम लोग अरेस्ट करते हैं 411 की। चोर बाजार इसमें बंद करना देना चाहिए। हाँ, उधर चोरी का चीज़ रोज बेचता है चोर बाजार, हर जगह बेचते हैं। आप कंप्लेंट बनोगे आप दिखाओ कि आपका माल उधर पड़ा है तो हम आपको लेके आपके FIR लेके वो रिकवर करेंगे, रिस्क करेंगे। जब भी चोरी का माल बराबर सस्ता में खरीदता है। हाँ, चोरी का माल जब भी कंप्लेंट किया है कि ऐसे ऐसा सब
कंप्लेन किया है कि ऐसा ये सब चोरी हुआ है और 6 महीने के बाद में या कभी भी वो वापस रिकवर होता है सपोज, करेक्ट, then police will themselves contact the complainant or the complainant has to go on to the police station to follow up. हाउ यू विल कम टू नो प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड? No, because you see in my एक सेकंड, आपने चोरी का कंप्लेंट दिया, जी बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते रहती, उनको अगर चोर मिला, प्रॉपर्टी मिला, तो वो चोर बहुत बताएंगा कहाँ से चोरी किया, वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, बोले मैं ये घर से चोरी किया था। देन पुलिस विल कॉल यू कि आपका क्या क्या चोरी हुआ था, वो हमारे पास लिस्ट है, उसने बेचा है, आ जाओ पहचान के। नहीं, क्या है हमारी कार से चोरी हुआ था, हाँ, ऑर्नामेंट्स कार से we were क्या going चोरी हुआ था? ornaments, jewelry. अच्छा, ज्वेलरी चोरी हुआ था, करेक्ट। So which was kept there for the next day, and we had just gone to a wedding for being taken for the next day. और रात के टाइम पे 12 बजे कार के अंदर से चोरी हुआ वो, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट किया, 3 घंटा बिठाया हमको, they didn't do anything. We were pleading to them कि see this is just outside here, somebody or the robber must be just around here, habitual. They say you just keep quiet, sit here. Then they produce us to some higher officer. Higher officer started firing us. How can you keep these things in the car? Why are you so negligent? Think everything admitted. Sum total was that things have been stolen. Can you give description? Can you tell us what is the source of your this? Means there were so many questions. Correct. They want to avoid your To complaint. which we were not in a position to immediately produce. As it is, we were all very much taken aback, shocked Correct. with all this. And on top of it, at night, that too, it was about 1:30, 2 o'clock. At that time, after going there at 11:30 till 2:30, they had made us sit there. And 2:30, they produced us with some higher officer there. And then he started bombarding all this. Then he says, okay, you go, we will see. ऐसा करके Whether गए। your application was taken? Pardon sir? Whether any complaint was taken in writing? नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, बोलो हमको वो तुम कितना ग्राम का है, कितना है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ऑल दैट यू सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू, और सब आपको अप्रोक्सीमेट देना पड़ता है। हाँ, एनीवे वो सब जो भी अप्रोक्सीमेट दिया उसको डिस्क्रिप्शन, यू गो, कुछ होगा तो देखेंगे। नेक्स्ट 10-15 days में ऑलमोस्ट एवरी 2 days 3 days वी यूज्ड टू गो देयर, कुछ हुआ साहब, कुछ हुआ, and the police officer would go on changing. We were not given any number how to this. Your complaint was not registered, so the question of number doesn't arise. So now this, under these circumstances, what innocent people like us can do? We were at their mercy. This is called as the bulking of crime. So there is a solution. If they are not registering your FIR under section 154, they are supposed to record your FIR. There is a provision under section 154(3). If the station house officer is not recording FIR, you are required to submit a written complaint to the deputy commissioner of police. If deputy commissioner doesn't take your complaint, then you are supposed to go to the court and show your application. If they are not taking application and refusing to accept it, send it by post. Show some acknowledgement to the court कि we are following, we are given so much letter, police is not taking FIR, not taking cognizance. The court will order the police to register offence under section 156(3), and your case will be registered and investigated, and the IO has to report back to the court कि in this matter we are registered the case and we are investigating this case. But sir, by that time, the jewelry would have got, they would have melted it, whoever to that fellow, the robber must have sold, he would have all melted it and not taken out and all that finish. Where is it? No, there is no trace. It is not like, I will tell one instruction. I will give you one example. While I was attached to Dahisar police station, a lady gang, 2-3 ladies were arrested. मार्केट में वो जब लेडीज लोग भाजी लेते थे तो ये पीछे से क्या करते थे, ऐसा उनके पास ये था सीजर, और ऐसा करके वो चेन बराबर काट के एक औरत ऐसी ये करके, देयर वर सो मेनी केसेस. तो वन डे some lady, brave lady, caught that gang, and control room was informed, and that 2-3 ladies were arrested. They have admitted the crime. दहीसर मार्केट में हम लोगों ने जितना भी चेन मारा है हम लोगों ने मारा, हम डेली करते हैं. They were resident of
some temporary huts near Dahisar highway. Then all the people from Dahisar highway were booked. They were surrounded, their huts were searched, nothing was found. Then one of the person told that our leader is staying at Vasai. So we went to, Virar. Then we went to Virar, there were some hutments, we got their leader. We searched all the people around, उनका जो गैंग रहता है वो पाड़ा बोलते हैं उसको. Nothing was stolen, nothing was found. Then we could make out that he was making some unnecessary movements and he was not fold ऐसा फोल्ड करके रखा था. तो उसको पूछा ये ऐसा क्यों कर रहा है, बोले तुम्हारा हाथ बताओ जरा. जनरली क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जब एक्यूज को पकड़ते तो उसका फिंगर स्लिप लेते और वो रिकॉर्ड पे रहता है. तो हम लोग को एक इन्वेस्टिगेशन टैक्टिस है. अभी आपको बोलेगा आप स्लिप बताओ, आप बोले विच स्लिप, काय का स्लिप. लेकिन क्रिमिनल को बोलेगा तुम्हारा स्लिप बताओ तो वो दोनों हाथ आगे करेगा. तो दैट टैक्टिस आई ट्राई टू यूज़, मतलब तुम्हारा स्लिप बताओ. तो वो बोला विच स्लिप. फिर उसने गलती से उसने वो स्लिप लेते उसने दोनों हाथ आगे किया. फिर मैं उसको बोला तुमको किधर पकड़ा था, तो बोला मैं ये पुलिस में पकड़ा था, ये था वो था. फिर उसका जो चादर था वो निकला तो वो सोने का कड़ा इतना बड़ा ऐसा, इधर एक कड़ा और इधर एक कड़ा, यानी कम से कम 20-25 चेन मेल्ट करके उसने इधर रखा था. वो गांव में जाके बेचते बाद में. फिर दैट मेल्टेड पोर्शन आई हैव सीज्ड अंडर पंचनामा. और कंप्लेंट को बुलाया. मेरे जुरिडिक्शन में वो टाइम 13 चेन स्नैचिंग हुई थी. मैं 13 कंप्लेंट को बुलाया, मतलब तुम्हारा चोर मिल गया है और ये सब मेल्ड किया है, तो आप कोर्ट में जाके रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन करो. फिर कोर्ट को मैं सबमिट किया कि पुलिस हैव नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न द प्रॉपर्टी. तो कोर्ट गिव ऑर्डर कि दैट मेल्टेड पोर्शन की 13 पोर्शन करके उनका वेट के माफिक उनको वापस करो. तो द क्वेश्चन ऑफ गोल्ड आपका कभी भी चोरी हो जाए 10 साल पहले, वो मेल्ट होने के बाद आपको 200% आपको मिलता है. Provided the police takes action, no, that is the main important thing. See, now in this case, it is within 1 hour. The matter was reported to the police, and we were trying to plead to them. Okay, just now, if you send somebody in that the place where it is, you might get some clue. Correct. Don't tell us what we have to do. Correct. We will do. We were accused. You must have left your car door open. How can you? No, whatever it may be, your car it has remained. But this is the case. No, but he says, why did you are negligent? They were only telling us this. You should have contacted our Shena. वो बराबर 217 लगा रहा था. और Shena have not come today. So this is. It is their bound and duty, mandatory है कि आपका FIR होना ही चाहिए. अगर FIR नहीं तो you can go step by step. Go to the DCP, go to the commissioner, go to the DG, go to the home minister, go to the lastly court. कोर्ट में तो भाई एप्लीकेशन करते बैठो. दे हैव टू रजिस्टर द केस. और जिन्होंने केस नहीं लिया उसके ऊपर एक्शन भी होगी. या उसको वर्किंग अप क्राइम बोलते हैं. सिंपल थिंग है कि आपका अगर कंप्लेंट नहीं ले रहे, यू सेंड इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट. उनका इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टू द कमिश्नर, वो लेटर में लिखो कॉपी करके सीसी करके वो ऑटोमेटिक रजिस्टर कर लेंगे. अभी भी आप कर सकते हैं. अभी भी कर सकते हैं. अभी भी कर सकते. कितना दिन हुआ चोरी हो गया? ये तो करीबन 3 साल हो गया. 3 साल. 30 साल के बाद भी कर सकते हैं. 3 साल हो गया. तो चोरी का जो पनिशमेंट है 3 साल पनिशमेंट है, तो वो अभी लॉ ऑफ लिमिटेशन में नहीं आएगा. वो आप 3 साल आप चुप क्यों बैठे? कोर्ट में क्यों नहीं गए? नहीं, आप एक एप्लीकेशन डाल के रखो, कंडोनेशन ऑफ डिले करके रहता है. वो एप्लीकेशन लगा के आप एप्लीकेशन करके दे देखो ऐसा ऐसा हुआ था. डायरेक्टर जनरल और एक कोर्ट में डालो. Sir, particularly in this type of thing, the limitation is there in the crime. ना रिपोर्टिंग का जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, नहीं तो आपके पिताजी के टाइम पे चोरी आप बोलेंगे 20 साल के बाद मेरा कंप्लेंट लो, ऐसा नहीं होता है. जो कानून में जो सज़ा लिखी है उसके मुताबिक आपको कंप्लेंट करना पड़ता है. अभी शीना बोरा मर्डर केस में किधर कंप्लेंट था? कुछ भी मर्डर नहीं था, लेकिन अभी कंप्लेंट रजिस्टर हुआ आफ्टर सो मेनी ईयर्स. तो द मर्डर, रॉबरी, डेकोटी जिसमें 60 साल के ऊपर सजा है, वो जब बाद में डिटेक्ट होने के बाद भी FIR हो सकता है. अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. ये नॉट रिपोर्टिंग. ये एक्ट्रेस वाज टू बी अबडक्टेड बाय द गैंग. सो फेमस, अभी मैं वो सब नाम लेने लगे, मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट. जो गैंगस्टर था वो अब्रॉड,
तो उसने 12 गैंगस्टर को डिप्यूट किया था कि एक्ट्रेस को किडनैप करो, और बाद में वो रैंसम मांगने वाला था और क्या करने वाला था, आई डोंट नो. And the gangsters were in action to kidnapper, abductor. Their leader from abroad told that they had maintained watch outside her house. The gangster ने फ़ोन किया कि अरे वो शूटिंग पैकअप करके she has gone to some hotel, आज घर पे आने वाले ने, तुम निकल जाओ उधर से. तो वो लोग वहाँ से निकल गए. 2 fellows from that gang बांद्रा में आए, उधर डांस बार में गए और जो लेडी डांस कर रही थी उसके ऊपर पैसा ये करने लगे. उनके पास पैसा था ये सुपारी का, तो पैसा ये करने लगे. तो somebody gave information to my हवलदार कि ये लोग पैसा ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहा. It was the information. So we went there. We caught these 2 fellows. One was found with revolver. Then they were interrogated. They were having plan क्या करने का, किडनैप करके किधर लेके जाने का, एंटायर प्लान. We tried to contact that actress. She refused to lodge the complaint. Then we interrogated further to see whether they are involved in how many crimes in earlier, whatever has happened earlier. So they admitted double murder. One truck fully loaded with medicines. They followed that truck from Dawa Bazaar up to Vasai Virar. And when the truck approached near a jungle, there is a jungle on highway on both sides. They stopped that truck. They killed the driver and cleaner. Further took that truck to go down near some place at Virar. And they were selling daily that medicine through their agents and etc. They were doing this selling business for 3 years. Murders had taken place 3 years ago. Nobody was knowing. There was a murder case registered at Manikpur police station, Vasai. 2 unknown bodies murder found. बस इतना ही. No investigation. वो ट्रक चला रहे थे क्या, देयर वाज नो स्टोरी विद पुलिस. देन दिस 2 people led us to the jungle where they have pointed the place where they have murdered. Then we could trace that complaint number, CR number, and then we told IO that these are the accused who have murdered. Then they also pointed at godown. The godown still at the time of search some medicines were lying there. So there was no reporting, only a murder case was reported. But how this, while interrogating the kidnapping case, we found this case. So आपका केस कब डिटेक्ट हो रहा आपको मालूम नहीं. अभी समझो आपके ज्वेलरी है, वो लोग किधर भी पकड़ा जाएंगे और उधर एडमिट करेंगे हमने इधर चोरी किया था, उधर चोरी किया था. तो वो जो आदमी, जो पुलिस ऑफिसर रहेगा, जो पकड़ेगा उनको, वो आपके कार के पास या जो एरिया में लेके आएगा या पुलिस स्टेशन में जाएगा कि ये लोगों का गोल्ड चोरी हुआ था क्या, तुम्हारे से कोई FIR है क्या, ये है क्या. ऐसा रिवर्स इन्वेस्टिगेशन भी होता है. अनरिपोर्टेड केसेस ऐसे डिटेक्ट होते. अभी दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं. वो एक इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी 2 साल से मिसिंग था, आज वो आया एरिया में, इन्फॉर्मेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया. तो हम लोगों ने उसको पकड़, वी वर नॉट नोइंग कि उसने क्या किया है. हमने उसको इंटरोगेट किया, हमको मालूम है तुमने क्या क्या किया है, तुम खुद बताता है क्या, दिखाओ तुमको. मैंने बोला मैं खुद बताता. क्या किया तुमने, हमको मालूम नहीं, वो बता रहा है. बोला मैं 2.5 साल पहले कुरला से एक बच्चे को उठाया था एक्सटॉर्शन रैकेट में. एक्सटॉर्शन का कॉल किया था, पैसा नहीं मिला था, हमने वो बच्चे को एक कुएं में डाला है. दैट टाइम सहार एयरपोर्ट वास का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो वहाँ एक कुआं था, वो कुएं में डाला करके उसने फिर वो कुआं बताया उसने. फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का गाड़ी वीड़ी मंगा के पानी बाहर निकाल के स्केलेटन निकाला. मालूम भी नहीं था कि ये मर्डर हुआ है करके. वन मिसिंग कंप्लेंट वाज ऑन द रिकॉर्ड एट कुरला पुलिस स्टेशन. तो हम लोग गए तो वो झोपड़पट्टी के लोग थे, वहाँ कोई नहीं था, कोई मिला ही नहीं कोई, लेकिन कंप्लेंट खाली मिला. देन पुलिस बिकम कंप्लेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, और वो पुलिस ऑफिसर बिकम कंप्लेनेंट, और वो मर्डर केस रजिस्टर हुआ बाद में 3-4 साल के बाद. तो कौन सा केस कब डिटेक्ट होगा, गॉड नोस, लेकिन होता है.
ऊपर वाला बराबर भेज देता है वो। पुलिस ऑफिसर कैन कंप्लेन। हाँ, कोई नहीं मिला था क्या करने का। शोमन अभी दूसरा एक केस बढ़ा था उसका मैं सांता क्रूज का। एक दिन में मायावाद सीनियर पे सांता क्रूज 2002 में, तो मुझे हवालदार ने फ़ोन किया, संडे था, सर जल्दी पुलिस स्टेशन में आ जाओ। मतलब क्या हुआ आज संडे, आज ना आज जल्दी आ जाओ, बहुत सीरियस लपड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन में गया तो उसने बताया, मतलब एक फ़ोन आया था बांद्रा से, और वो जो कॉलर था उसने बताया कि जुहू चौपाटी कुलीवाड़ा में किसी को ये किया, ज़मीन में गाड़ दिया है और उसके 2 हाथ ऊपर आए और वो बांधे हुए हैं, स्केलेटन दिख रहा है खाली। बोले हाथ बाहर कैसे है? बोले उधर कुत्ते लोग कर रहे हैं। तो डॉग्स हैव डिटेक्टेड दैट केस। फिर हम लोग जाके वो बॉडी वीडी बाहर निकाला, देयर वाज नो आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसका चेहरा तो था ही नहीं, सब स्केलेटन था। फिर कपड़े ताबे में लिए, उसका घड़ी ताबे में लिया। देन अभी इसका नाम नहीं पता नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन कैसा करने का। फिर हम लोगों ने पूरा बॉम्बे में जितना भी मिसिंग कंप्लेंट था वो सब चेक किया। तो 7 दिन के बाद हमको ऐसा मालूम पड़ा कि MIDC में कंस्ट्रक्शन वर्कर एक मिसिंग था, वो सेम डिस्क्रिप्शन, उसके कपड़े, वो घड़ी का भी डिस्क्रिप्शन, फिर उसके कंस्ट्रक्शन वो सब टेम्पररी वर्कर लेते हैं। फिर उसका औरत घर में था उधर कंस्ट्रक्शन साइट पे। मैं उसको बोला आपका हस्बैंड किधर है? बोले 7 दिन से मिसिंग है, हम लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट दिया है MIDC में। फिर ये कपड़ा दिखा, बोले मेरे हस्बैंड का ही कपड़ा है, किधर है वो? फिर हम बोले यार ढूंढेंगे, डोंट वरी, वो कपड़ा मिला है खाली। उसको बताया ना मर्डर वर्डर करके शुरू में। फिर वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, और उसने एक क्लू दिया कि वो जब घर में गया उसके साथ में वो नीचे जो काम करता है वो भी साथ में गया था। फिर वो नीचे वाला जो साथ में गया था उसको हम लोगों ने पकड़ा। फिर किधर किधर गया, फिर उसने वो जुहू चौपाटी तक स्टोरी आ गई। फिर मोटिव वॉज वेरी सीरियस, द डिसीज एंड दे नीचे वाला जो लड़का और एक लड़का, 3 लड़के कलकत्ता जाते थे हमेशा। वहाँ से लड़की को बोलते थे हम शादी करेंगे, ऐसा करके बॉम्बे में लाते थे और बेचते थे। तो दैट लास्ट ओकेजन दे हैव सोल्ड दैट गर्ल फॉर 75,000, और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चौपाटी पे बैठे थे। तो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वो जो डिसीज था मर गया, वो बोला मेरे को 50 और तुम दोनों 25 बांट के लो, ऐसा कुछ तो बोला। असली वो बोले हम लोग साथ में है, 25 लेंगे। नहीं बोले तुमको मैं 50 रखूँगा। तो ये लोगों ने उसको मर्डर करके गाड़ दिया उधर 25,000 के लिए। और बाद में ये केस ओपन हुआ। ओपन कौन किया? स्ट्रीट डॉग्स। तो कैसा केस ओपन होगा? दैट रिपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, खाली एक मिसिंग कंप्लेंट था। Sir, particular in this discussion, you speak about the technical things. Then particularly in the court, anytime they order, there is a 2 word. One is a reverse investigations and further investigations. That is a small line. Now I want to know, in reverse investigations, you destroy means रिवर्स इन्वेस्टिगेशन है, री इन्वेस्टिगेशन रहता है। reinvestigation. Reinvestigation And second, and further investigation. And second is further investigations. Means many things police is not investigated, that they have to add. And reinvestigation means full case they have to Correct. reinvestigate and put. Means all data is not concerned. अभी इसमें एक लॉ में ऐसा Means एक जो मैं बता line I didn't, I want to know that. लॉ में ऐसा प्रोविजन है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिट चार्जशीट अंडर 173 CRPC, और उसमें चार्जशीट सबमिट करने के बाद कंप्लेनेंट इज एंटाइटल्ड टू नो कि क्या एविडेंस है इसमें, क्या क्या जमा किया है, या प्रॉपर्टी कितना रिकवर हुआ है। कभी कभी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व रहता है करोड़ में, रिकवर कुछ नहीं, फिर पैसा गया किधर? ये पुलिस को तो आरोपी दिया है, फिर पैसा किधर गया? तो जब कोर्ट में वो जाके एप्लीकेशन करता है कि दिस केस शुड बी री इन्वेस्टिगेटेड एज द प्रॉपर्टी इज नॉट रिकवर्ड, देन कोर्ट ऑर्डर द पुलिस to re-investigate or further depend upon the court investigate matter under 173(8), that is a separate provision। फिर वो उसका वापस इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉपर्टी मिला तो उसको वापस चार्जशीट देता है। इट इज़ कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है उसका। लेकिन जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर रहता है वो कभी तपास नहीं करता, वो बोलता है मैंने जो किया वो सही है। तो जनरली देखो अब हाई कोर्ट में पिटीशन रहता है कि इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस स्टेशन में मत दो, CBI को दो, CID को दो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन।
आईओ ट्रांसफर हो गया, दूसरा आईओ ट्रांसफर हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा आईओ को देंगे. According to the CRPC, senior PI in charge of the police station is supposed to be the IO. He delegates power to the PSI API. अभी आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपको लगता है कि ये ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं कर रहा है, तो यू कैन अप्रोच ACP इन सीनियर PI के इन्वेस्टिगेशन बराबर दूसरा आईओ दे दो, तो दे विल इशू अ मेमो टू द आईओ, तुम पेपर जमा कर भाई, दूसरे को दो, तुम कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा होता है. But sir, in particular things, whatever the old investigation is there, that is a limit. Means अगर उनके समझो 6 जन का already, particularly the court took the 6 जन की जबानी ऑलरेडी ले ली है उसने, तो उनकी फर्दर वापस जबानी लेंगे कि फिर आगे का जो इन्वेस्टिगेशन में सब वापस होता है ना. मींस अगर तो पहली जबानी झूठी भी हो सकते हैं ना. हाँ सर, आप जबानी दिया वो लिखता है अलग ही कुछ. हाँ, अगर लास्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 25 सेक्शन, whatever statement made before the police is always inadmissible. Yes sir. कुछ है ही नहीं इंडिया में, इसलिए पंच बेंच है. इन लंदन ब्रिटिश में उधर पुलिस का जो जबानी है दैट इज एज गुड एज एविडेंस. इंडिया में पुलिस का एविडेंस जीरो वैल्यू है, सब कन्फेशन बेशन सब इट इज़ अंडर थ्रेट्स, प्रॉमिस एंड इंडूसमेंट, सो इट इज़ नॉट अलाउड. पुलिस का कुछ भी रिकॉर्ड अलाउड नहीं. पुलिस चार्जशीट का भेजती है, आपका समझो चोरी हो गया तो आपका एफआईआर, आपका प्रॉपर्टी रिकवर हो गया तो जिससे रिकवर है उसका स्टेटमेंट, और जो पंच के सामने हो पंच ये वो सारे वो एग्जामिन होती है. पुलिस को कोर्ट में क्या पूछते हैं, तुमने इसका केस रजिस्टर किया फिर ये रिकवर किया, दैट्स ऑल. पुलिस इज नॉट आई विटनेस टू दैट इंसिडेंट. उसने क्या क्या स्टेप्स लिए दैट ही हैज़ टू नरेट बिफोर द कोर्ट, और स्टेटमेंट टेकन बाय पुलिस इज इनएडमिसिबल, उसको कुछ वैल्यू नहीं है. फर्दर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन कुछ फर्क होता है क्या, मतलब पहला जो इन्वेस्टिगेशन शॉर्टी रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आप जाके बता सकते हैं ना कि इसने आरोपी पकड़ा है नहीं पकड़ा है. और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि ये आरोपी रहता है जगह पे, पुलिस अरेस्ट नहीं करती पैसा खा के, 4 आरोपी तो एक को ही पकड़ती है या एक को पकड़ती है वो भी झूठा, रियल आरोपी को ये करते हैं. अभी समझो एक्सीडेंट केस हुआ, एक अभी सलमान खान का केस ले लो, अभी सलमान खान गाड़ी चला रहा है, फिर वो ड्राइवर वाला मैं चला रहा था, तो उसमें री इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर सब. सर ये आर्टिकल्स जो भी अभी चोरी होते हैं घर से, लेकिन ये सलमान खान केस में वो पुलिस के पास नहीं है, वो डायरेक्ट कोर्ट में बोला था. सर ये आर्टिकल्स जो भी चोरी होते हैं घर से, अभी उनके पुलिस में कंप्लेन करने के लिए बिल्स की ज़रूरत होती है? नॉट नेसेसरी, हर एक के बिल थोड़े रहते. ओके. लेकिन बिल रहेगा तो यू गॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कितना वैल्यू है, कौन सा दुकान से लिया था, इट एडिशनल प्रूफ मिलता है. लेकिन बिल का अभी घर में चोरी हो, आपके जो गहने हैं वो कितना पुराने ज़माने के रहते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वो टाइम तो बिल का सिस्टम भी नहीं था, तो उसका बिल देना बहुत मुश्किल रहता है. तो कोर्ट विल आस्क यू टू फाइल एफिडेविट की वट एवर यू आर गिविंग वैल्यू, ये सब बराबर है, बस उतना, दैट इज एडमिसिबल. वो कंप्यूटर में जो डाटा थेफ्ट होता है ना, डाटा थेफ्ट वो क्या आईपीसी में आता है? नहीं, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 43 डाटा थेफ्ट. पनिशमेंट अलग, पनिशमेंट 3 years अलग, इसका अलग. हाँ उसका अलग. अभी 66D है चीटिंग बाय इम्पोर्सनेशन जो है, जो 66D IT एक्ट में, तो आईपीसी में 419 आईपीसी है चीटिंग बाय impersonation. तो पुलिस while registering the case, they register case like this 43 IT Act read with 419 IPC, both read with. तो इसमें सजा मिले या उसमें सजा मिले, दोनों में से. लेकिन सर, I want to say sorry to say in the same field, police is having a very poor knowledge of the law. Correct. Very poor. They are not having knowledge. Even superior officers, they are having not knowledge. Even investigation. अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. नाउ आई एम वर्किंग एज ए एडवाइजर इन बैंक. तो एक पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने लेटर लिखा, यू ब्रिंग योर MD हियर एंड आई वांट टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट. द केस वाज वेरी सिंपल. फ्रॉम अकाउंट होल्डर some 17 or 20,000 were withdrawn by phishing, you know. It is again IT Act 66CD. Now who has committed the offense? Unknown. पैसा किसका गया? अकाउंट होल्डर का. उसने क्या किया? ब्रांच मैनेजर को एक्यूज, बोले मेरे अकाउंट से पैसा ये लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके निकाला. उसमें 16 डायरेक्टर को एक्यूज.
Actually, he should not, IO should not have called MD and director. 17,000 की चोरी, ये क्या संबंध है उसका? There is a Supreme Court judgment कि directors and the MDs, they are not responsible for day-to-day affairs. अभी बैंक में नीचे क्या चलता है, नीचे आदमी क्या कर रहा है, they are not responsible. लेकिन उनके पास कोर्ट ने बोला कि ये लोग का आदमी जब केस डालता है तो वो सारे लोग का नाम देता है. पर पुलिस ऑफिसर और कोर्ट शुड यूज डिस्क्रिप्शन कि ये 16 लोग में एक्चुअल क्या हुआ है, कौन इन्वॉल्व है, तो वो उन लोग का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना चाहिए. लेकिन कोई देखता नहीं. चलो तुम्हारा नाम एक्यूज है, आ जाओ इधर जवानी देने को, दादागिरी. चलो ऐसा एक केस में हम पुलिस में गए थे, तुम्हारा ये लेके आओ वो लेके आओ. मैं गया, आई एम रिटायर्ड ACP, आई वॉज इन एंटी करप्शन, आपका जो लेटर है वो गलत है. और मैं कैसा गलत, मतलब यू आर नॉट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यू डोंट नो लॉ, यू कैंट कॉल माई MD, दिस इज जजमेंट. है ना, ऐसा नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं उधर आके सबको अरेस्ट करूँगा, मतलब यू कांट डू एनीथिंग. अभी आई कुड, बिकॉज आई वॉज इन पुलिस, आई टोल्ड हिम ऑन स्पेस, मतलब यू डोंट नो लॉ, मतलब तुम साइबर डिप्लोमा किया है, कैसा होता है फिशिंग मालूम है आपको? नहीं वो मैं तो मालूम कर लूँगा, मतलब मालूम तुमको खुद को मालूम नहीं, हाउ यू कैन इशू नोटिस. तो वो टाइम सत्यपाल सिंह कमिश्नर थे, मैंने सत्यपाल सिंह को एक SMS किया, मतलब दिस IO डज नॉट नो द ABCD ऑफ साइबर क्राइम एंड ही इज इन्वेस्टिंग ऑफिसर एंड ही इज अननेसेसरली हैरेसिंग द हायर ऑफिसर्स. तो एक SMS किया. सत्यपाल सिंह ने उधर बोला, सीनियर PI को सबको बुलाया, पेपर लेके आओ, चलो भागो इधर से, ट्रेनिंग ले जाओ. देन पेपर देन इन्वेस्टिगेशन मार्क 2 साइबर सेल. ये पुलिस स्टेशन में जब आप लोग जाते हैं, एक्चुअली इनको लॉ का खाली वो एक टाइम कभी पढ़ा हुआ उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे, दैट्स अ लॉ प्रैक्टिकल में आता है. दे आर नॉट एक्सपर्ट. आपको कुछ बीमारी हुए, यू विल गो टू डॉक्टर ना, लेकिन ये डॉक्टर है ही नहीं है लॉ के, उनको लॉ मालूम नहीं, तो आप कैसा करेंगे? वो लोग इन्वेस्टिगेशन मालूम नहीं. सब नहीं है, कोई अच्छे लोग भी है, लेकिन मेजॉरिटी बहुत बुरा स्टेज है. एक केस में मैंने साइबर सेल में आपका जो 15 सोलह टच में है, उनको पूरा बताया, SBI का था, इस तरह से फ्रॉड मेरे साथ हुआ, कौन सा सर्वर से हुआ, कैसा हुआ, और मैंने वो आदमी को पकड़ा भी. अरे वाह, इन दिल्ली और बैंगलोर इट इज. तो उसने क्या किया, सीधा मेरे से जो पैसा लिया था ना, ऑलरेडी चले गया था, वो भी रिवर्स कर दिया. बट पुलिस इज व्हाट इज आस्किंग कि व्हेन यू आर गिविंग ए कंप्लेंट, अभी ही सेड कि वो तो बिहार में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, बेंगलोर में बैठा होगा, दैट इज इज पार्ट ऑफ ड्यूटी. ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है ना, आपने इधर जो साइबर पुलिस में काम चलता है, हाँ, यू आर लॉजिंग द कंप्लेंट बाय गिविंग एप्लीकेशन. हाँ, और एट द मोस्ट दे कैन आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा गया है. हाँ, लेकिन किसने तो मेल भेजा है, हैकिंग हुआ है, वो उनको कुछ मालूम नहीं रहता है. और इधर जो सर्विस प्रोवाइडर जो है गूगल वगैरह, जो वो कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं साइबर क्राइम. जस्ट ओनली फॉर्मेलिटी, लॉज कंप्लेंट करो, यू विल नॉट गेट जस्टिस एट ऑल इन साइबर क्राइम. वेरी रेयर और सिंपल केस में होता है. but they have to give सर्विस प्रोवाइडर्स इन्फॉर्मेशन, आप गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, आपको IP एड्रेस नहीं मिलेगा तो कैसा होगा इन्वेस्टिगेशन? पे आजकल आता है इन्फॉर्मेशन. नहीं, it depend. बहुत सारा मिल सकता है सब. साइबर क्राइम में ब्रांच है एंडापुला का, वेरी रेयर. साइबर क्राइम में आपका जो ब्रांच है ऑफिस BKC पुलिस स्टेशन पास, दैट इज साइबर पुलिस स्टेशन. दे आर स्पेशल एंड आल्सो द कॉर्पोरेट में इधर है मुकुंद पवार सर. हाँ, देयर आर 2-3 ऑफिसर, दे आर वेरी नाइस. मुकुंद पवार वाज एक्सपर्ट, दे हैव वर्कड इन साइबर सेल फॉर 10 years, तो वो एक्सपर्ट है वो. लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, लास्टली मेन एक्यूज आज तक कहीं भी मिला नहीं. सर पर्टिकुलरली कन्विक्शन नहीं हुआ, देयर इज नो. नहीं, कन्विक्शन तो दूसरी बात है, डिपेंड अपॉन कोर्ट, फिर कोर्ट में विटनेस कैसे आया है, क्या डॉक्यूमेंट हुए. कन्विक्शन इज वेरी टोटली डिफरेंट एरिया. particularly in this type of things, with working you learn also. The technology is a wide thing. आपका जो फर्स्ट केस हुआ था आनंद खरे का, जो पुलिस की वेबसाइट जिसने ब्रेक किया था, विजय मुखी और उनकी टीम, तभी मैं भी था वहाँ, बराबर CCI में आपने पूरा ये किया था. तो मैंने ये देखा कि अगर पुलिस थोड़ा इफोर्ट करती है, हाँ, उनका सर्वर पकड़ा जाता है, तो देन उनका क्राइम कंटिन्यूस रहता है. मैंने जो उनको बताया, बट दे मीन्स दे वांट, दे नेवर से नो ऑल्सो, यस ऑल्सो, बराबर है. ऐसे में एक दूसरा बंदा, क्योंकि उनके पास है ना, एक में आप बैंक से आप थोड़ा कनेक्टेड है, तो उनके पास डेटा काफ़ी होता है, मीन्स जो बैंक में से चोरी होता है, सर्टेन पार्ट दे डोंट नो. All data are available in market.
Market, yeah. And even in the you go certain website, they sell also each other the data. अपना येस बैंक का 3.5 लाख का कस्टमर का डेटा फॉरेन में पड़ा है, उधर सब स्कीमिंग होता है। अपना इधर कार्ड से पैसा जाता है, अरे कैसा गया, थाईलैंड में गया, इधर गया, उधर गया, सब डाटा अपना बाहर है। And particularly they are what they do actually they say कि I am calling from bank. अभी क्या होता है, आप I am traveling, I am not watching कि what will happen. मैं देखने नहीं जाता हूँ कि बैंकर आपको दम देते हैं कि आपका अकाउंट बंद करेगा, ये करेगा, आप yes, सारे पासवर्ड, that is amazing. सब OTP सब शेयर करते हैं, और because of the they बाद में took एक the सेकंड में advantage आपका of अकाउंट the खाली हो fear, जाता है। sir. So these are things that we in Money Life are doing seminars all the time. हम साइबर Telling क्राइम people. साइबर क्राइम के लिए अलग एक्सपर्ट है। No, it's not even cyber crime. It's simple phishing and phishing transactions. I think you should talk about it. मैं आपको एक हाउस ब्रेकिंग का इंटरेस्टिंग केस बोलता हूँ। मैं DN नगर पुलिस स्टेशन में था, मुझे एक मैसेज आया कि चोर घर में घुस गए और पब्लिक ने सारा बिल्डिंग को ये किया है, सराउंड किया है। तो मैं वो जूहू रोड पे गया, एक बिल्डिंग में सारी पब्लिक जमा हुई थी, ऊपर बिल्डिंग में गया, बाहर से नेबर ने कड़ी लगाया था, अंदर डे हाउस ब्रेकिंग चल रही थी। उसने देखा कि उसका नेबर तो हॉलैंड में, फिर उसका घर कैसा खुला, तो उसने क्या किया, उसको मालूम नहीं अंदर चोर है, तो बाहर ताला टूट के नीचे पड़ा था, तो उसने क्या किया, स्मार्टली कड़ी लगा दिया, तो चोर अंदर अटक गए। फिर उन्होंने कॉल किया पुलिस स्टेशन कि अंदर चोर है और आवाज़ आ रहा है। फिर मैं 2 हवलदार को लेके गया, दरवाज़ा खोला तो वो चोर शिफ्ट हुआ अंदर बेडरूम में। फिर बेडरूम का दरवाजा अंदर से फिर हम लोगों ने तोड़ के वो लोग को निकाला। उन्होंने पूरा 4 घंटा बैठ के हाउस ब्रेकिंग करके पूरा माल बांध के रखा था, और उनको ये कड़ी लगाने के वजह से दे कुड नॉट गॉट, वो दे केम फ्रॉम कल्याण एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड, एंड बाद में उनको सजा हुई 2-2 साल वो लोग कन्विक्शन हो गई। DN नगर में जो जितने भी शॉप थे वो कल्याण में से गैंग आता था मोटरसाइकिल पे और ताला तोड़ के चले जाते थे। तो एक गैंग ऐसा है कल्याण का पकड़ा, उसने एक ने ब्लाउज का दुकान ये है ना शॉप से रिसेप्टिकल तोड़ा था, एक ने घड़ी का तोड़ा था, और पूरा कल्याण में बेचा था। फिर हम लोग रिको गए, अभी किसके घर में जाएंगे, तो हम लोगों ने जाके उधर बोर्ड लगाया कि जिसने भी ये घड़ी और ये सब ले आया इधर ला के डाल दो। फिर हम लोग उधर जगह पे बैठ के पंचनामा किया, फिर कोई घड़ी डाल रहा है, कोई डाल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा लिखा था receiving stolen property is the offense, you can be arrested, so you please produce, you will be treated as a witness। तुमने जो भी प्रॉपर्टी है गैंग से लिया है ला के दो। हम लोग 2 दिन बैठ के जितना भी माल गया था उसने 80% माल रिकवर करके लाया। Is there any link with the police station and gang in the story? Sometimes होता है police station के साथ gang का थोड़ा link होके। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था सर, लिंक है अंधेरी में हुआ था। About 12-14 years back, I was traveling in a BST bus and I used to carry a leather pouch, hand में पकड़ के चलते हैं ना, उसमें मेरा सब रहता था, पास, पैसा, सब कुछ उसी में रहता था। और वहाँ 120 बस जाता है मेरे ख्याल से, JB नगर में वो डबल डेकर बस होता है, उधर उतरने वाले चढ़ने वाले। हाँ पहले, अभी नहीं होता है, ये मैं 12 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। तो उधर आई न्यू मेरे हाथ से somebody was pulling it out, I couldn't do anything। इतना भीड़ होता है वहाँ पर चढ़ने वाले, आप वो लोग गैंग रहते हैं, ऐसा वो फाइल चला गया। So then I got down. Then there was another passenger with me. He says, "आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करो, ऐसा मत छोड़ो." तो he came with me. I went to the police station. अंधेरी स्टेशन के पास एक पुलिस स्टेशन है, उनकी jurisdiction में आता है। तो the person there asked me, क्या क्या हुआ आपका, कौन से स्टेशन पे गया? मैं बोला JB नगर बस स्टॉप पे गया ये सब। तो बोले आप आइए बैठिए यहाँ पर। मेरे को अंदर बिठाया, मैं बोला मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ। आप बैठिए, तो सी मेरे को अंदर बिठाया, चाय वगैरह पिलाया, और 10 मिनट में वो मेरा पाउच लेके आ गया। पकड़ा गया उन्होंने उसको? हाँ, मैं बोले किधर मिला? तो बोले है एक सोशल वर्कर है हमारा, उसका फोन आया था, वो पब्लिक टॉयलेट में गिरा था, उसने ला के दिया। और बोले देखो ये सब चोर लोग क्या करते हैं, पॉकेटिंग पिक पॉकेट करके वो पॉकेट फेंक देते हैं और अंदर से कैश खाली निकाल लेते हैं। हाँ, वो सब बाकी सब था, खाली कैश नहीं था। कैश नहीं था, वही है बराबर। अरे साहब, आपके IG थे ना चौधरी साहब, उनका लड़का मैं बहुत अच्छा लगा। अभी उनका वो बैंक में गए, गाड़ी में बैग रखा, बैग सडनली कोई उठा के पुलिस स्टेशन बताया कैसे सब
उसने बैग खोला होगा चोर ने, उसने देखा ये तो पुलिस आईजी और इसका है, पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ के चले गए। ये आप कार में जब जाते हैं ना तो सिग्नल पे रुके या आजू बाजू में किधर शॉप के पास रुकेंगे तो वो केरला का क्या के, अरे देखो आपका टायर पंक्चर है, आप नीचे उठ के जाएंगे, फिर आपका कार में से जाएंगे, फिर कोई पैसा डालता है नीचे, अरे आपके पैसे गिरे, फिर वो ड्राइवर उठा के नीचे जाएगा पैसा मांगने को, आपका बैग गुल। अच्छा, देर इज मोडस ऑपरेंडी। एक बार एवी नगर में ऐसा बोला था मुझे कि आपका पीछे का टायर में हाँ हवा नहीं, ये नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ करेक्ट, बट बाद में देखा तो एवरीथिंग वाज प्रॉपर। वो चोर लोग रहते हैं। ऐसा होता है हाईवे पे बॉनेट में से धुआं निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ तो धुआं नहीं निकल, गर्म हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। आप देखो बैठ के वो आके बॉनेट खोला, दूसरे ने पानी डाल दिया तो गाड़ी बंद। 85 में मैं सार पुलिस स्टेशन में था, ऐसा पेट्रोलिंग पे जा रहा था, सामने से एक गाड़ी बहुत दूर से आ रही थी और हमारा पुलिस गाड़ी का वो सब सिग्नल बिग्नल ऊपर लाल लिया हो रहा था, तो उसने पुलिस का गाड़ी देख के इतना फास्ट यू टर्न लिया आवाज़ करके, तो मैंने आई डाउट लिया कुछ तो भी लफड़ा है। देन आई चेस्ट हिम अप टू खैरानी साकी रोड चला गया, तो वो आदमी गैरेज में चला गया, फिर उसको गैरेज में गाड़ी हॉल्ट होने को तो हम लोगों ने पकड़ा उसको, मतलब क्यों भागा, इतना लंबा भागा क्यों, ऐसा वो गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट क्यों नहीं, अब चोरी का गाड़ी। फिर उसको पकड़ा हम लोगों ने, तुम्हारा शेठ कौन है, फिर वो बाजू में रहता था, उसको भी पकड़ा। तो गैरेज में 9 गाड़ी थी, 9 कार्स वेयर देयर, तो 9 गाड़ी का मतलब डॉक्यूमेंट लेके आओ, कोई गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं। बाद में ये नया 9 गाड़ी हम टोइंग करके सहार पुलिस स्टेशन गए, उनका इंजन नंबर चैसिस नंबर ढूंढा, तो ये 3, 4, 5 साल पहले चोरी हुई गाड़ी उन्होंने सब नई करके बेची थी। इंजन नंबर चैसिस नंबर ये पुरानी गाड़ी, ऊपर सब किया लेकिन अंदर इंजन नंबर चैसिस नंबर सेम थी। बाद में वो लोग पकड़ा गए और सारे 5-6 लोग पकड़ा गए, सज़ा भी हो गया। तो गाड़ी मिलती है कभी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंट जो व्हीकल है अभी केरला में जाता है, किधर नेपाल में जाता है, इंडिया में रखते ही नहीं वो लोग, वो तुरंत दूसरा मिनट में वो लोग नंबर प्लेट चेंज करते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू। बाद में ये नहीं रहता ना, वायरलेस होता है वो पर्टिकुलर गाड़ी का कि ये गाड़ी मिसिंग है, ये चोरी हुआ, लेकिन वो नंबर प्लेट चेंज होता है 5 मिनट में, गली में जाके वो तुरंत नंबर प्लेट चेंज करता है, वेरी डिफ़िकल्ट। गाड़ी एक दफ़ा गई तो गई, रेड हैंड पकड़ा तो पकड़ा। तो चोर बाजार में बोलते हैं आप 2 मिनट के अपना बाइक रखोगे तो 2 मिनट के बाद किधर, इनके पास सिलेंडर, इनके पास आगे का टायर, इनके पास पीछे का टायर, रिकॉग्नाइज किया। रिकवरी होता है, चोरी का वो डिस्पोज होता है, नहीं रिकवरी होता है, वो कंप्लेंट लेके जाता है ना। अच्छा, कोई रिकवरी नहीं हुआ जो में उधर है ना आपका शांतिपुर पुलिस गाड़ी का तो पूरा जाएगा, पूरा डिसमेंटल होके पूरा बेचते हैं वो लोग। अब ये कुर्ला का जो है ना लिंक रोड अभी जो नया हुआ है, वो मोटरसाइकिल के सब पार्ट्स मिलते हैं, आप उनको खाली बोलो मेरा ये पार्ट चाहिए, फिर वो चेक करेंगे नहीं है कल आ जाओ, रात को कोई तो भी गाड़ी चोरी होती है वो पार्ट आपको आ जाता है, वो कुर्ला से, कुर्ला बाजार जो मांगता है वो पार्ट आपको मिलेगा, खाली ऑर्डर देने का। क्या पहले देखते हुए आएगी, क्या तो रात को एक गाड़ी चोरी वो पार्ट आपको मिलेगा। अगर वो चोर पकड़ा गया, वो बोलेगा ये दुकानदार को बोला था, फिर वो दुकानदार बोलेगा आपको दिया था, तो आप लाइन में आएंगे, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 411, 1 साल की सजा। आखिरी क्वेश्चन, 7 बजने को आ गए। Anybody wants to ask last question? Yeah, once. Sir, I want to know. you want to ask question or give suggestions? Yeah, no, it's a question. हाँ. See, अभी IT का पूरा हो गया है. Like all the banks, any bank branch you can go for that particular bank and you can make your transactions. You don't have to go to your own branch. So this kind of a system should come in the police stations also. ये एरिया में क्राइम हुआ तो इसी पुलिस स्टेशन में क्यों जाना चाहिए? जो मुझे नियरेस्ट है, जब मुझे ध्यान आया वहाँ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ मेरा कंप्लेंट लेना चाहिए, पूरा डिटेल्स लो, बाद में आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करो। करेक्ट, देयर इज अ सर्कुलर ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि आदमी पुलिस स्टेशन में आने के बाद आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो उसका 0 शेयर के अंडर FIR लो और ट्रांसफर इट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। मैं तो एक न्यू बॉम्बे में ऑफिसर नहीं ले रहा था, मुझे ऐसा था कंप्लेंट नहीं ले रहा है, मैं गया मतलब आप कंप्लेंट ले लो नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगा और आप सस्पेंड हो जाएंगे। उसने तुरंत 0 करके कलकत्ता भेजा, कलकत्ता हुई और रेस्ट द टाइम। अच्छा, ये है ऑलरेडी है और देर इज अ प्रोविजन इन लॉ अंडर सेक्शन 170 to 180 CRPC। अभी समझो देर आर मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन,
तो कभी एक जगह चोरी हो गया, वो चोरी का माल एक जगह मिल गया, तो जिधर माल मिल गया उधर भी कंप्लेंट कर सकते हैं आप। अब ये साइबर क्राइम में देर जुरिडिक्शन है ही नहीं है, वहाँ पूरा वर्ल्ड जुरिडिक्शन है, तो आप कंप्लेंट किधर करेंगे? जहाँ रिपोर्ट करेंगे उधर वो उसको लेना ही पड़ेगा। देर इज ऑर्डर, लेकिन लेते नहीं। ये क्यों नहीं लेते कि उनका पोल्यूशन का क्राइम बढ़ जाएगा ऐसा समझते। फिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? फिर उसको वो एक दफ़ा उसने केस लिया, वो परमानेंट आयोग हो जाता है। आरोपी पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, अपील गया तो उसको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, अभी बड़ा पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये सब अवॉइड करने के लिए ये सब चक्कर है, अवॉइड ड्यूटीज। Let's give a big hand to Mr. Tupe for a wonderful presentation.